So let's start with the first portion, or let's first of all try to get to a good definition of business analytics. Yeah, एक business analytics actually होती क्या चीज़ है? इसकी जो है एक comprehensive definition जो है ना, let's just see that. So business analytics is a set of disciplines and technologies for solving business problems using data analysis, statistical models, and other quantitative methods. It involves an iterative methodical exploration of organizations' data with an emphasis on statistical analysis to drive decision making. अब यहाँ पर it's a pretty long definition, I do understand, but मैंने जो है कुछ key points जो है यहाँ पर highlight किए हैं. अब the key takeaways हैं from this particular definition वो ये है कि this business analytics is it's not like a single thing. It's a combination of multiple disciplines and technologies. So when you talk about business analytics, it does not mean कि अगर आप Python सीख लेंगे तो you would be good at business analytics, या आप Excel सीख लेंगे, या आप Power BI सीख लेंगे. A combination of technologies और जो disciplines हैं इसके साथ associated है कि you should be able to manage quantitative methods, या statistical analysis, basic जो statistical analysis है, basically वो आपको चीज पता होना चाहिए. तो इनको मिलाकर जो है business analytics जो है drive होता है, या only then you become a good business analytics professional. So it's a combination of multiple disciplines and technologies. It's not a single thing, and it involves data analysis, statistical models, and quantitative methods, as I said. So generally, a good starting point is that you try to or strive to become a data analyst, and then you can sort of graduate from that towards other, more advanced skills, जो कि इस domain के अंदर जो हैं basically जो reside करते हैं. So, for example, if you start as a data analyst, you can move on to becoming a machine learning engineer or an AI professional. Again, उसके लिए आपको additional set of disciplines या education या कुछ key जिसे कहते हैं ना courses जो है ना वो आपको take up करने पड़ेंगे, probably in mathematics and statistics, but it is possible. So a good starting point can be कि आप जो है basically data analysis शुरू करें, and then you actually move towards more advanced concepts. Then the whole point of actually doing this is that you have to drive decision making. So in any organizational or in any organizational setup, or या भी जो भी revenue driven setup है, the core point of doing all of this is कि आप decision making को drive कर सकते हैं. ठीक है, there is no point अगर आप जो है ना basically decision making को drive नहीं कर पा रहे. So your analysis, your statistical modeling, your grip on quantitative methods, that has no value unless and until आप bottom line को कोई ना कोई effect ना कर सकें. You can drive the revenue somehow, or you can actually facilitate decision making. So these are the key takeaways. So business analytics is nothing more than a combination of disciplines and technologies. ठीक है, और उसके अंदर जो है then there is a plethora of skills जो कि आप acquire करके niches के अंदर काम कर सकते हैं, and the whole end point is कि आप जो है ना decision making को drive कर सकते हैं. अब there are different types of analytics. ठीक है, primarily to start off with, there are 4 types, and these four actually analytics की जो types हैं, they are usually in step form, या ये basically ये gradually जो हैं organizations move up करती हैं in steps में. So for example, there is descriptive analytics, there is diagnostic analytics, there is predictive analytics, and then there is prescriptive analytics. And what I mean by saying कि organizations graduate करती हैं या move up करती हैं इस ladder पे, वो ये है कि it's very hard for any organization कि वो predictive या जिसे कहते हैं ना prescriptive analytics perform कर सकें unless and until वो descriptive analytics या diagnostic analytics नहीं कर रहे, या उनका कोई ecosystem develop नहीं हुआ हुआ जहाँ पे वो जो है ना इतना data जमा कर रहे हैं कि at least ये 2 perform हो सके. So and that's why I've actually added over here that organizations usually graduate up this ladder step by step. So you would start from descriptive analytics, but then you would move to diagnostic, predictive, and prescriptive.
यूजुअली जो है जो मैंने देखा है वो ये है कि एनी न्यू ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेसिकली इज स्टेपिंग into the or actually has taken the decision of using data for good decision making, वो primarily ये दो काम सबसे पहले करते हैं, descriptive analytics और diagnostic analytics जो है ना वो perform करने की कोशिश करते हैं पहले, and on the basis of that they move on to predictive prescriptive analytics, जिसके अंदर machine learning artificial intelligence की तरफ जाना move करते हैं. So a good foundation where the data is available to the organization is really important. So what are these four types? What is descriptive analytics? I mean, it says what happened. Diagnostic analytics is all about why did something happen. Predictive is all about what might happen next. Prescriptive analytics, what should we do next? Okay. So if we have, if we were to look at these, from a data perspective, so let's have a look at an example. For example, this is a data, from like an organization that I used to work for, and what this visualization is actually recording is over time kitni जो है ना basically grand total sales हुई है over time, all right, which is the maroon or the red part, और आपके orders जो हैं वो कितने जो है ना basically acquire हुए. So when you talk about descriptive analytics, that would primarily focus on what happened in the February of 2019. ठीक है, that is what descriptive analytics is. कि पिछले साल 2019 में क्या हुआ, ठीक है, और फिर on top of that there can be different statistical और mathematical जिसे कहते हैं ना measures, जो कि आप इस डेटा के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा यार, पिछले साल 2019 में क्या हुआ था और उसकी डॉलर वैल्यू क्या थी, या what was the mean value of a particular period in 2019, or the min value or the max value, or या standard deviation क्या थी. So looking at the past and trying to describe पिछले साल क्या हुआ था and what is the dollar value that was earned out of all of this, that is what descriptive analytics primarily allows you to do, और उसका core जो focus है वो ये है. When it comes to diagnostic analytics, थोड़े से जो है ना सवाल की नोयत जो है वो तब्दील हो जाती है. Why was there a spike in sales of December 2019? Was there a similar spike in the sales of December 2018? And what's the reason that's driving these spikes? So if I were to look at this, over here, यहाँ पर तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये 2019 के अंदर जो है ना एक gradual steep सी जो है ना माउंट या माउंटेन है यहाँ. So what I'm trying to see is कि अच्छा यार ये spike आया क्यों था, क्या इसी तरह का कोई सिमिलर स्पाइक पीछे था, एंड व्हाट इज द रीजन दैट्स ड्राइविंग दीस स्पाइक्स. सो इवन अगर मैं इन दो डेटा पॉइंट्स को ना उठाऊं, मैं फरवरी 2019 को उठाता हूं, तो आप ये देखेंगे कि बड़े सिमिलर किस्म के दो स्पाइक्स हैं. देयर इज फरवरी 2019 में देयर इज अ स्पाइक, एंड देन देयर इज फरवरी 2020 जहां पर भी एक बड़ा सिमिलर सा स्पाइक है. And just to give you an overview, ये जो business है, this is a gifting business. So February 2019 में और February 2020 में आपको similar spikes हुए हैं, वो इस वजह से नजर आ रहे हैं. Although उनकी value में फर्क है, लेकिन spike इसलिए नजर आ रहे हैं इसलिए क्योंकि ये इन जो है it's Valentine's month, और Valentine's month के अंदर जो है बेसिकली बहुत ज्यादा जो है गिफ्टिंग की जाती है यूएसए में, खासतौर पे जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा की जाती है. लोग जो है ना बेसिकली गिफ्ट्स भेजते हैं एक दूसरे को. और now this trend itself is actually seasonal in nature. अगर आप ये देखें तो spikes बहुत ज्यादा similar. So this is what diagnostic analytics is. अच्छा यार, फरवरी 2020 के अंदर there was a spike. Was there a similar spike in December 2018 or 2019? Yes, there was. Reasons driving these spikes, I mean, most probably it's because के हमारे पास जो है ना वैलेंटाइंस का दिन जो है वो फरवरी के अंदर होता है. और इसी तरह you would see other spikes as well. For example, दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 में जो है ना बड़े सिमिलर से स्पाइक्स हैं, और ये प्राइमरीली इसी वजह से बिकॉज दिसंबर में भी गिफ्टिंग बहुत ज्यादा की जाती है, बिकॉज इट्स क्रिसमस सीजन. एग्जैक्टली, ठीक है. सो जब हम बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स पढ़ाते हैं तो उसके अंदर हम फोरकास्टिंग का एक पूरा पोर्शन जो है वो कवर करते हैं, और उसके अंदर जो सीजनल इम्पैक्ट है उसको केटर करने के लिए हम जो हमारी जो रिग्रेशन की इक्वेशन है उसके अंदर हम तरीकाकार बताते हैं कि हमने कैसे जो है ना सीजनैलिटी को केटर करना है. बिकॉज if you let's say कि आप you're trying to forecast something,
So on the basis of whatever has happened in the past, you're trying to predict what's going to happen in the future. अगर आप किसी किस्म की linear regression को use करें या linear equation को use करें और उसमें आप seasonality को ना address करें तो आपका जो forecast है वो गलत निकलेगा. So इसीलिए ये seasonality जो है is actually a very important factor when it comes to forecasting stuff or looking into the future. इसी तरह let's talk about predictive analytics. जिस तरह क्योंकि मैंने बताया था कि 4 किस्में. So predictive analytics is looking into the future. So as you can see over here, ये by the way Power BI का एक जो है visual है and it allows you to forecast into the future based on seasonality and all that. ठीक है. तो इस particular visual के अंदर ये जो red वाला part है, this is the forecasting part. So in this, what I'm trying to do is based on 2018 and 19 data, what does 2020 look like? Okay, and you can see कि जितना टाइम मैंने इसको जितने टाइम के लिए आगे मैंने इसे फोरकास्ट किया, it has made a very similar spike over here. यहाँ पर आपको मेरे माउस का जो है कर्सर आई थिंक नजर आ रहा है इस जगह पर, and over here as well. ठीक है ना. तो it's because of the fact कि it's actually taking those shocks जो कि उसे डेटा के अंदर नजर आ रहे हैं and it's actually forecasting it into the future. Okay, so this is predictive analytics. We're actually looking into the future. And then there's prescriptive analytics. Okay, now prescriptive systems they are actually only coming live now. यानी कि अभी जो है आपको एक plethora of prescriptive systems जो है ना वो नजर आएंगे मार्केट. So what is a prescriptive system? या prescriptive analytics क्या होती है? So based on the forecasted predicted 2020 outlook. So prescriptive systems they're based on what they do is they actually prescribe you a course of action. So they'll look at the data and then they prescribe you कि अच्छा यार ये 3-4 जो है ना course of actions आप ले सकते हैं. So prescriptive systems they were actually rare like a couple of years ago, but now I actually see a lot of prescriptive systems जो कि basically आपको prescribe कर सकते हैं. So you can actually feed it data and tell it कि अच्छा यार कि ये data set है, मुझे बताओ कि आगे forecast क्या होगी इसकी. ठीक है. And on the basis of that आप उससे you can actually generate out some prescriptions as well. I won't talk about the accuracy of that. वो कितनी ठीक होंगी कितनी गलत होंगी because again future में क्या ठीक होगा क्या गलत होगा ये तो किसी को भी नहीं पता. Let alone ChatGPT. लेकिन it does prescribe you a set of actions जो कि आप perform कर सकते हैं. ठीक है. Time series analysis. Absolutely, time series analysis जो है वो part है forecasting का बिल्कुल. लेकिन prescriptive system जो है वो basically when I say a prescriptive system, it's actually a system that tells you कि अच्छा यार मैंने data को देख लिया है, मैंने तुम्हारी forecast भी देख ली है. And these are the 4 things that I would want you to do if you want to get to results A, B, and C. So it prescribes to you a course of action. Okay. So these are the different types of analytics जो कि हम perform करते हैं. इसमें एक और example जो है मैं आप लोगों को साथ में जरा दिखा देता हूँ. For example, this is also अच्छा now ये जो 4 टाइप्स है ना these are sort of tool agnostic. इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर टूल के ऊपर ये काम कर सकें. You can do descriptive, diagnostic, to a certain extent predictive analytics on on any tool. Even Power BI और Excel के अंदर भी आप जो है ना predictive analytics to a certain extent कर सकते हैं. Manual काम इसमें जरा ज्यादा होता है लेकिन it's not impossible. So what you see over here is actually a dashboard in Power BI. Now, अब ये जो dashboard है, this is primarily doing descriptive and diagnostic analytics. ठीक है ना? ये वो पहली 2 phases हैं जो यहाँ पर sort of perform हो रही हैं. So ये एक educational data set के ऊपर जो है ना ये analysis हुआ है. What इस data की core क्या है? इस data की core पे तकरीबन कोई 60,000 बच्चों का examination का वो है. उनका data पड़ा हुआ. Or what this allows you to do is it allows you to look at different subjects. ठीक है. और उन subjects के अंदर basically particular regions में जो ना कैसे perform किया है. If I look at the core data, ठीक है. core data के अंदर जो है ना वो जो है ना बच्चे का data ही पड़ा हुआ है on a single row level.
ठीक है, बट व्हेन आई एम परफॉर्मिंग डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, तो मैंने क्योंकि इसको रीजन लेवल पर, एसएलओ लेवल पर, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, टॉपिक लेवल पर और कॉग्निटिव लेवल पर ग्रुप करना था, तो इसमें आपको बच्चे का नाम नहीं पे नजर नहीं आएगा, आपको उन बच्चों की एग्रीगेटेड परफॉर्मेंस नजर आएगी। ठीक है, एंड व्हाट दिस अलाउज यू टू डू इज इट अलाउज यू टू लुक बैक ऑन अ पर्टिकुलर असेसमेंट and say कि अच्छा यार why did Gujranwala perform so well? ठीक है, and if it performed well, how well did it perform? So for example, अगर मैंने यहाँ पर let me actually do this again. Yeah, so what you see over here is that ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, these are SLOs, और ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, these यानी कि 3.8, 3.5, this is the average achievement of the entire data set. So on an average, for a particular student learning outcome, which was division of numbers up to 6 digits, the entire data set for the 5 math group achieved 3.8 marks. And if I were to go and see this blue bubble and say, this is Gujranwala, इसने बहुत अच्छा perform किया है, तो how well did it fare up against the average of the entire data set? So अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, तो आप ये देखें कि Gujranwala has actually performed better than the average. So the average was somewhere over 3.81, but the Gujranwala has performed 4.4. So उसने average से ऊपर perform किया. Now then you can actually go ahead and look at the reasons कि उन्होंने क्यों अच्छा perform किया. Almost सारे topics के ऊपर, almost सारे किस्म के जो cognitive levels होते हैं, उनके ऊपर they're actually performing better. On the other hand, if I look at a region just as poorly performed here, for example, Gujarat. So Gujarat has actually performed lower than the average, the province average. Or agar dekha jaye, to you can see that they have performed poorly because they have performed poorly on topics, and on cognitive level. So this is, I would say, a good example of descriptive and diagnostic analytics. On the basis of this, I can pinpoint कि अच्छा यार, where do I need to put in the effort while devising some sort of a rehabilitation plan. For example, अगर मैंने गुजरात को बेहतर करना है, तो what are the areas per subject जिनके ऊपर मुझे फोकस करना पड़ेगा? मैंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किस तरह के जो हैं बेसिकली डेवलप करवाने हैं, सो दैट टारगेटेड ट्रेनिंग हो सके उनकी उन एसएलओस के ऊपर जो जहां पर वो उन एसएलओस पे या टॉपिक्स पे या कॉग्निटिव लेवल्स पे जहां पर बच्चे पूरली परफॉर्म कर रहे हैं. So this is one example of how you could actually use descriptive and diagnostic analytics. Moving ahead, let's have a brief look at कि एक organization के अंदर एक analytical ecosystem जो है ना वो design कैसे हुआ था. Now I'm not saying that this is the most optimum analytical ecosystem. When I say analytical ecosystem, what I mean is कि इसमें क्या layers होंगी of technology that would lead to a system which could facilitate decision making. ठीक है? So what is an analytical ecosystem? It's a combination of different technologies primarily. ठीक है? और फिर then there is human capital involved in the middle of these layers जो कि basically analysis वगैरह perform कर रहा होता है with the help of those technologies. I'm not saying that this is the most optimum set of technologies, but ये है कि this is like a baseline जो कि primarily किसी न किसी सूरत में आप इस्तेमाल कर रहे होंगे. At the bottom of this, it's the data foundation. ये आपकी जो raw data layer होती है या आपका data warehouse होता है. If you say कि एक जगह पे data warehouse लगा हुआ है और फिर एक semantic layer है. What is a semantic layer? Yeah, but I'll explain that. But does anybody know the difference between, let's say कि एक business decision making को facilitate करने के लिए semantic layer लगी हुई हो और एक data warehouse के अंदर क्या फर्क है? अगर if I were to give you a small example through this, so let's say कि this is a SQL Server Management Studio का मैं एक session अगर जल्दी से खोल लूं, so let me actually show you for those who actually do not know. Yeah, so if you look at this, अगर आप ये देखें तो this is a small database, ठीक है, which is a combination of different tables. ठीक है, so a warehouse can host these
डेटाबेसेस, ठीक है। सो अ डेटा वेयरहाउस इज सॉर्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटाबेसेस, ठीक है। तो ये डेटाबेस जो है, डेटाबेस इटसेल्फ इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेबल्स जिनके दरमियान में किसी न किसी किस्म का रिलेशनशिप चल रहा होता है, और एक डेटा वेयरहाउस जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटाबेसेस, ठीक है, which might or might not actually be speaking together. So अगर वो एक जगह पे होस्ट इकट्ठी हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो आपस में वो डेटाबेसेस जो है ना वो बात भी कर रही हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली। ओके, सेकेंडली जो है थोड़ा सा, सो एसेंशियली राइट डाउन एट द बॉटम डेटा फाउंडेशंस जो हैं वेयर योर रॉ डेटा लाइज, ठीक है, और दिस इज योर वेयर योर डेटा वेयर हाउस माइट बी, ठीक है, since most of the things are actually moving into the cloud, so you have the ability to actually develop warehouses on premises and now in the cloud as well. मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का नाम इस वजह से लिखा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट के अभी बहुत तेजी से जो है ना कंपनीज जो है वो क्लाउड के ऊपर जो है मूव कर रही हैं, और ऑन प्रेम का जो ट्रेंड है ना दैट्स रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट के इट्स फाइनेंशियली कॉस्टली। आपकी जो कैपिटल कॉस्ट है ऑफ एक्चुअली सेटिंग अप एनीथिंग ऑन प्रेमिसेस इज वे हायर देन द क्लाउड, जहां पर आप पे एज यू गो कर रहे होते हैं। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द रॉ डेटा फाउंडेशंस, वो जनरली जो है जो 4-5 बड़े नाम है इसके अंदर, गूगल बिग क्यूरी या गूगल इटसेल्फ, देन देयर इज एडब्ल्यूएस की सर्विसेज अवेलेबल हैं, देन देयर इज एजर, देन देयर इज टेराडाटा, ठीक है। तो जो आपकी फाउंडेशन जो है वो डेटा की यहाँ पर डलती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जरा फर्क करने की जरूरत ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपका लेट्स से कि एक डेटा वेयर हाउस है तो और उसके अंदर लेट्स से डेटा बेसिस पड़ी हुई है। So let's say you have a data warehouse और उसके अंदर let's say you have like a number of different data bases over here. अब जरूरी नहीं है कि you would find all of these useful, या इनके अंदर सारे का सारा डेटा जो है ना वो यूजफुल होगा आपके लिए to do some sort of a reporting, ठीक है यहाँ पर। So I would say कि ये आपकी कोई रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। And what usually happens is कि एक ecosystem develop करने के लिए what happens is कि there is some sort of a how would I say that there is a layer in the middle, ठीक है ना, जो कि feed हो रही होती है इस वेयर हाउस से और इनके अंदर जो पड़ी हुई डेटाबेस। this layer itself जो है ना ये भी it's just like a I can't exactly remember the name myself as well, लेकिन it's just a repository, या आप यूं समझ लें कि सॉर्ट ऑफ अ सिमेंटिक लेयर जहां पर जो है बेसिकली आपका डेटा वेयर हाउस जो है वो बेसिकली बैकअप कर रहा होता है या लाइक पुश कर रहा होता है डेटा, और इधर जो डेटा आ रहा होता है दैट्स प्राइमरीली डेटा जो कि आपकी बिजनेस रिपोर्टिंग के अंदर इस्तेमाल होगा, ठीक है। सो इट्स अ शॉर्टेड आउट फॉर्म जो कि किसी न किसी क्लीन्ड अप प्रोसेस में से गुजर कर यहाँ पर आती है। बिकॉज देखें जो सारी चीजें डेटा वेयरहाउस के अंदर जा रही है ना, लेट्स से कि ये प्रोडक्ट के किसी प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है, या लेट्स से कि एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्टेड है, ये सारी जो इसकी जो डेटाबेस है इसके अंदर जो डेटा है दैट्स ऑल ऑफ दैट इज नॉट यूजफुल, ठीक है। रिपोर्टिंग के लिए यू माइट नीड टू एक्चुअली फिल्टर ऑल ऑफ दैट डाउन इनटू समथिंग मोर कंसाइज, मोर क्लीनर, ठीक है। एंड दिस एक्चुअली लेयर अलाउज यू टू डू दैट, ठीक है। सो ये जो फिर बेसिकली लेयर है दिस एक्चुअली फीड्स योर रिपोर्टिंग लेयर। सो लेकिन जनरली जो है आप व्हेन यू हैव हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, सो आप कभी भी जो है ना प्रोडक्शन की डेटा वेयरहाउस के साथ नहीं कनेक्ट करते। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ सेकेंडरी लेयर जो कि फीड हो रही होती है, जिसके अंदर बेसिकली आपके काम का डेटा जो कि एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होना है इन रिपोर्ट्स, ताकि जो है ना मार्केटिंग की, सेल्स की, फाइनेंस की जो डिसीजन मेकिंग है उसको ड्राइव की जा सके, वो यहाँ पर फीड हो रही होती है, ठीक है। और देन दैट इज पुश्ड इनटू डिफरेंट रिपोर्ट्स, और उसमें से फिर अगेन आप एसक्यूएल के जरिए व्यूज भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट क्यूरीज भी लिख सकते हैं जो कि आपकी रिपोर्ट डायरेक्टली कंज्यूम कर ले। अगेन पावर बीआई जो है वो डायरेक्ट क्यूरी के जरिए भी, इवन टैबलू भी जो है वो डायरेक्ट क्यूरी के जरिए जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है ना डेटा को खींच सकता है। सो जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू कि ये सारा इकोसिस्टम जो है प्राइमरीली काम कैसे कर रहा होता है, और इसको बताने का मकसद ये था कि ये जो लेयर है, दिस लेयर ओवर हियर, दिस वन, दिस एट द बॉटम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी नाउ दिस कुड बी द रॉ लेयर, या दिस कुड बी द लेयर, द बिजनेस एनालिटिक्स लेयर जो कि मैंने आपको बताई।
ठीक है, बट द बेसिक स्टेपिंग स्टोन जो है ना वो स्टार्ट यहीं से हो। उसके बाद जो है देन देयर आर डिफरेंट रिपोर्टिंग एंड क्यूरिंग टूल्स, जिनके जरिए आप बेसिकली ना सिर्फ डेटा को क्यूरी कर सकते हैं, बट आप जो है बेसिकली उसके ऊपर जो है ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने बेसिकली जो है ना लगानी हो वो भी लगा सकते हैं। सो यू कैन यूज माई एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, पावर बीआई इटसेल्फ टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो है ना रिपोर्टिंग का काम करता है, ईटीएल का काम भी बहुत अच्छा करता है। लेकिन अगर आपके पास ये सारा इकोसिस्टम अवेलेबल हो तो इट इज मच बेटर कि पावर बीआई से जितना पीछे आप ये काम ट्रांसफॉर्मेशन का काम परफॉर्म कर सकते हैं वो करें, क्योंकि पावर बीआई जो है उसकी रिसोर्सेज या जो उसका वर्टीपैक इंजन है वो जो है ना इट हैज लिमिटेड पावर। तो बट आई हैव स्टिल पुट इट ओवर हियर बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि यहाँ पर आप जो है ना पावर बीआई के जरिए जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते, so you can actually perform transformation not only in MySQL, SQL Server मैनेजमेंट स्टूडियो, पावर BI, टैब्लू से भी टैब्लू प्रेप से भी आप ये थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डेटा फाउंडेशन, देन इट्स द रिपोर्टिंग, एंड देन यू नो विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन में अगेन जो है ना पावर BI, टैब्लू, क्लिक, हाइसेंस, माइक्रो स्ट्रेटेजी, ये जो है बेसिकली ये सारे के सारे जो है ना सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अब पावर बीआई की आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी आप देख सकते हैं, इट्स नॉट ओनली अवेलेबल एट द ईटीएल लेवल जहां पर यू नो थ्रू पावर क्यूरी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बट ऑल्सो एट द विजुअलाइजेशन लेवल। टैब्लू जो है मैंने यहाँ पर इस वजह से नहीं डाला बिकॉज टैब्लू जो है टैब्लू का भी एक ईटीएल का टूल है, ठीक है, एंड इट्स कॉल्ड टैब्लू प्रेप, बट द प्रॉब्लम with that is you know that has a separate license cost. So Tableau का अगर आपका डेस्कटॉप का वर्जन है तो उसकी एक अलग लाइसेंस की कॉस्ट है, और साथ में जो Tableau प्रेप है फिर उसकी एक अलग लाइसेंस की कॉस्ट आती है। पावर बीआई इस लिहाज से जरा थोड़ा सा यू नो इट्स एक्चुअली अ लिटिल चीपर बिकॉज पावर बीआई की जो डेस्कटॉप वर्जन है जिसके अंदर पावर क्यूरी एम्बेडेड आती है जो कि ईटीएल का काम कर सकती है, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो डेस्कटॉप के ऊपर जाए अगर आपने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करनी है यू कैन एब्सोल्युटली डू इट टोटली फ्री। और ऑन टॉप ऑफ दैट यू नो देन देयर इज सो विजुअलाइजेशन, और अगर आपने कोई एनालिटिक्स वगैरह परफॉर्म करने हैं तो इसके ऊपर जो जो ना लेयर है उसके अंदर भी पावर बीआई और टैब्लू जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, बिकॉज अगर आपने डेटा इनरिचमेंट करनी है, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कोई करने हैं तो यू कैन यूज these 4 technologies for sure, या you know इसमें एक तो Jupyter notebooks है जिसके अंदर जो है ना Python अवेलेबल है, फिर 9 जो है इट्स नो कोड लो कोड टूल जिसके जरिए आप एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। पावर बीआई भी आपको एनालिटिक्स परफॉर्म करने में हेल्प करता है, इसके अंदर ऑफ द शेल्फ बहुत सारे ऐसे विजुअल्स हैं जो है जो कि आपको ये ना एनालिटिक्स वगैरह परफॉर्म करने में, केपीआईज वगैरह डेवलप करने में, डेटा को इनरिच करने में हेल्प करते हैं, एंड टैब्लू भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। सो this is how you know एक primarily एक ecosystem जो है ना organization का analytical ecosystem you drive around. There is a data foundation, there is some sort of a reporting layer, फिर उसके बाद एक visualization और analytical एक layer होती है जिसके अंदर आप plethora of technologies को use कर सकते हैं, and then at the top then there is action and decision making, ठीक है। So ये सारा काम जब होता है तो ऊपर जो है decision making जो है वो basically facilitate। So roles and skill set contributions की अगर हम थोड़ी सी बात करें, so when you're actually starting into the field of data analytics, so कुछ जो चुनिंदा जो important roles हैं जो कि आपको मुख्तलिफ जगहों पे नजर आएंगे, that could be as a data analyst, as a business analyst, as a data scientist, data architect, data engineer, data visualization engineer. Data analyst is primarily focused on you know facilitating change और decision making through data analysis। तो उसका जो core forte होता है या जो उसकी जो basically deliverable होती है that revolves around basically its data। On the other hand, a business analyst is actually primarily an agent of change। वो data के ऊपर जो है rely करता है, लेकिन then there is a lot of other things that he does। उसका primary काम जो है ना एक business analyst का, it is to translate commercial requirements into technological जिसे कहते हैं requirements। So आप यूं समझ लें कि a business analyst is actually a bridge between the commercial side or the business side and the technology side, ठीक है। So हमारी भी जो like organization है पहले भी
इनफैक्ट मैंने काफी बिजनेस एनालिस्ट वगैरह के साथ काम किया है। तो व्हाट दे प्राइमरीली डू इज कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग problems. On top of that, identifying areas of improvement in products, and then developing documentation कि अच्छा यार कमर्शियल साइड पे ये लेट्स से कि प्रोडक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये आइडेंटिफाई हुई है, तो कमर्शियल जो है उस कमर्शियल साइड जो है उस प्रॉब्लम को कैसे, जिसे कहते हैं ना, वो कैसे समराइज कर रहे हैं, एंड देन टेकिंग ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन टू द टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड designing some sort of a technology solution for them. So this is what a business analyst as a whole does. ठीक है, अब business analyst जो है वो प्रोडक्ट्स के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। बिजनेस एनालिस्ट जो है वो बेसिकली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे जो डिफरेंट चलने वाले सिस्टम्स हैं उनके साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है वो उनके अंदर जो है ना वैल्यू ऐड जो है ना करने की कोशिश कर रहा हो। सो ये जो रोल है, ये बिजनेस एनालिस्ट का जो सॉरी रोल है, वो डेटा एनालिस्ट के रोल से बहुत मुख्तलिफ है। वो जो है बहुत ब्रॉड है। डेटा एनालिस्ट जो है ना उसका रोल जो है वो थोड़ा सा इट्स एक्चुअली अ लिटिल मायोपिक। बिजनेस एनालिस्ट का रोल जो है इट्स एक्चुअली अ लिटिल ब्रॉड। अगर हम ऑन दी रोल्स और स्किल्स की साइड पे देखें, ठीक है, स्किल्स की साइड पे इनफैक्ट, ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हैं कि इन मुख्तलिफ रोल्स में जो सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन है, डेटा विजुअलाइजेशन के जो स्किल्स हैं, बिजनेस एक्यूमेंट के जो स्किल है, एडवांस एनालिटिक्स का जो स्किल है, ये डिफरेंट रिक्वायर्ड है। बिजनेस एनालिस्ट के केस में एज आई सेड के सॉफ्टवेयर स्किल्स बहुत कम रिक्वायर्ड होते हैं, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, प्रोबेबली डेटा विजुअलाइजेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और बिजनेस नॉलेज जो है ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड डेटा एनालिस्ट इज दी अदर वे अराउंड। आपके सॉफ्टवेयर के स्किल्स जो है ना बहुत बेहतर होना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर के स्किल से ये मेरा मतलब नहीं है कि इट डज नॉट मीन कि आपको हार्ड कोडेड C++ बहुत ज्यादा आनी चाहिए। आपको जो अवेलेबल टूल्स हैं उनको यूज करना आना चाहिए। आपके इकोसिस्टम में जो अवेलेबल टूल्स हैं उनको यूज करना आना चाहिए। यू शुड बी इजी विद दोज टूल्स, ठीक है। सो इधर शायद इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं चाहिए होती। अगेन मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं चाहिए होती। एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट जो है वो बेसिकली वही शख्स है या वही इंसान है जो कि बेसिकली आप जो कि जाके अपनी आइडियाज को या अपनी फाइंडिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते। हाँ, अलबत्ता इसमें बिजनेस एक्यूमेंट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती, बिकॉज आप लाइक एक बड़े मायोपिक तरीके से ना एक बिजनेस के डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और ऑन दी अदर हैंड एक जो डेटा साइंटिस्ट है, अगर हम इस रोल के ऊपर आ जाएं, ठीक है, इसका जो स्किल सेट है वो अगेन डेटा एनालिस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। डेटा एनालिस्ट को जो है ना सॉफ्टवेयर स्किल्स ज्यादा चाहिए होते हैं। ऑन दी अदर हैंड डेटा साइंटिस्ट जो है ना वो एक नीश के अंदर काम कर रहा होता है। सो इट्स अ ग्रेजुएशन फ्रॉम द डेटा एनालिस्ट, ठीक है। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो हैं आपकी रोल्स की, वो जो है किस किस्म के जो है ना स्किल्स को जो है ना वो यूटिलाइज करते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि अभी खाली दुनिया में खाली यही 5-6-7 रोल्स हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर रोल्स जो कि डेटा के इर्द गिर्द और बिजनेस एनालिटिक्स के इर्द गिर्द जो है ना सॉर्ट ऑफ डिजाइन है, एंड इट्स चेंजिंग रियली क्विकली। बट सम ऑफ द बेसिक जो रोल्स हैं वो जो है these were those roles, ठीक है। So this is the end of the first section. एक डेटा इंजीनियर जो है ना वो प्राइमरीली आई वुड से इस जगह पे काम करता है। डेटा इंजीनियर जो है वो इस जगह पे काम कर सकता है, इस जगह पे भी काम कर सकता है, ठीक है। वेयर एज अ डेटा एनालिस्ट वुड वर्क प्राइमरीली ओवर हियर। सो डेटा इंजीनियर कर क्या रहा है? ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल कि इन पाइपलाइंस के ऊपर जो डेटा मूव कर रहा है, एक तो ये कि वो उसकी सैनिटी ठीक है, यानी कि वो उस नेचर का डेटा है जो कि रिक्वायर्ड है। उसके अलावा ये कि जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो जो है मीट हो रही है। पाइपलाइंस जो डली हुई हैं उनकी मेंटेनेंस जो है उस आई मीन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना डेटा इंजीनियर के पास होती है। डेटा इंजीनियर का प्राइमरीली काम ये होता है कि आपका जो डेटा फ्लोज हैं, ठीक हो गया ना, टू डिफरेंट एप्लीकेशंस या डिफरेंट रिपोर्टिंग सिस्टम्स, वो डेटा फ्लोज जो है ना वो एक्यूरेटली डेटा जो है ना वो पुश करते रहे।
बेसिक डेटा इंजीनियर का एक्चुअली काम भी होता है, वेयर एनालिस्ट जो होता है वो उस डेटा इंजीनियर के काम के ऊपर अपना काम बिल्ड कर रहा होता है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरे पास जो है ना, आई एम एज अ डेटा एनालिस्ट, मेरे पास एक एनालिटिकल लेयर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बिजनेस से एक रिक्वायरमेंट आती है कि यार ये हमें जो है ना मार्केटिंग में जो कूपन्स हैं, प्रमोशन जो हम रन करते हैं, उनकी एक रिपोर्ट बनानी। तो और उसके ये 15 KPIs हैं जो कि रिपोर्ट में नजर आने चाहिए, और ये लेट्स से स्ट्रक्चर है और हमें ये चीजें चाहिए। मैं बेसिकली जाकर जो है डेटा इंजीनियर के साथ प्राइमरीली बैठूंगा और उसे कहूंगा कि ओके गाइस, यू नो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, एंड आई नीड टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ पाइपलाइन बिटवीन माय वेयर हाउस एंड मेरा फ्रंट एंड का सिमेंटिक सिस्टम या सिमेंटिक लेयर या एनालिटिकल लेयर। और the data engineer is actually going to understand those requirements and then actually lay down those pipes. So data engineer का primarily ये काम है। और while doing that he is also responsible कि अच्छा यार उन pipelines में जो data move कर रहा है, क्या वो is it reliable, उसमें कोई खराबी तो नहीं है, is it usable, क्या उसकी frequency ठीक है। So ये primarily data engineer का काम है। So this file as a whole जो है ये this is actually just a data for a particular day की sales for a retail business, ठीक है। और इसमें जो चीजें हमें जो हमें बेसिकली अवेलेबल हैं या जो कॉलम्स अवेलेबल हैं, दे आर कंट्री, ऑर्डर डेट, स्टोर, सिटी, स्टेट, मंथ्स ओपन, टोटल ऑर्डर्स, टोटल स्टोर सेल, वेब ऑर्डर, वेब सेल, टोटल ऑर्डर्स। तो यूएस कैड का जो है बेसिकली एक कॉलम है जो कि जो बेसिकली आपकी करेंसी एक्सचेंज रेट है उसको बेसिकली मैनेज कर रहा है। ओके, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिलियराइज विद ये एक्सेल का इंटरफेस जो है वो काम कैसे करता है। सो एक्सेल जो है इट्स प्राइमरीली इफ यू ओपन इट अप, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्कशीट्स, ठीक है। So first of all, whenever you open up a file, Excel की जब भी आप एक फाइल को लोड अप करते हैं, तो that is primarily called a workbook. So what you are experiencing over here on the interface is actually the workbook, ठीक है। A workbook जो है उसके अंदर फिर then there are different worksheets। जिस तरह मैं बॉटम पे sheets ऐड करता जा रहा हूँ, these are the different sheets that are actually available inside a workbook, ठीक है। And in every worksheet there is a combination of columns and rows, जिस तरह मैंने ये हाईलाइट किए हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर कॉलम है और ये पर्टिकुलर रो है। ये जो है बेसिकली दीज आर द सेल्स, इनके अंदर जो है ना सेल्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स जो है ना, उसका जो इंटरसेक्शन बनता है, फॉर एग्जांपल ये ए कॉलम ए ओवर हेयर and row 1 over here is actually called A1, और इस intersection पे एक cell पड़ा हुआ है, this is a cell. Now this cell itself is actually editable, so you can not only write text data in this, but you can also write numerical data in this, ठीक है। So basic structure जो है वो Excel का सिर्फ ये होता है, there are workbooks जिनके अंदर आप काम करते हैं, then there are worksheets within a workbook, ठीक है। multiple worksheets होती हैं एक workbook में। फिर एक worksheet के अंदर जो है there is a combination of columns and rows, and on the intersection of every column and row there is a cell, ठीक है। और जो Excel का जो primarily जो interface है, that is a graphical user interface which is editable, so it's click and edit. So अगर आप एक सेल के ऊपर क्लिक करेंगे या मल्टीपल सेल्स की सिलेक्शन करेंगे या मल्टीपल सेल्स में कोई चीज को इकट्ठा तब्दील करना चाहेंगे, तो आप बेसिकली क्लिक एंड चेंज की मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं इसमें। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव अगर आप छोटे डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हो, लेकिन इसकी एक कंप्यूटेशनल कॉस्ट है, और इसी वजह से आप अगर एक नॉर्मल एक्सेल की शीट में काम कर रहे हो तो एक्सेल से इसके यार हम क्लोज टू 1 मिलियन रोज जो हैं
उनको हैंडल कर लेते हैं एक टाइम पे, लेकिन जैसे ही आप 3, 3.5, 4 लाख रोज के करीब पहुंचने शुरू करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि आपकी वर्कशीट के अंदर हैं या जिनके अंदर डेटा पॉपुलेटेड है, तो प्राइमरली आपकी एक्सेल जो है ना वो थोड़ी स्लो डाउन होना शुरू है। और उसकी वजह ही यही है, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट के जो एक्सेल इज एक्चुअली अ क्लिक एंड चेंज टूल। ऑन द अदर हैंड पावर बीआई जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा, लाइक मैंने उसमें पावर बीआई में ऑलमोस्ट 70-80 बिलियन रोज का डेटा भी हैंडल किया हुआ है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 मिलियन रोज का भी मैंने डेटा हैंडल किया हुआ है। दैट डज नॉट स्लो डाउन, और उसकी वजह यही है कि इट्स नॉट अ क्लिक एंड चेंज टूल, यानी कि पावर बीआई के अंदर यू कैन नॉट गो इनटू अ सिंगल सेल एंड मेक चेंजेस। आपको ईटीएल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए चेंजेस करनी पड़ती है। Excel, on the other hand, is useful when you want to make those individual cell changes. और उसके अलावा भी बहुत सारे differences है Power BI के अंदर और Excel के अंदर, but basic structure जो वो ये है, और basic जो differences हैं between a BI tool and Excel is this, ठीक है। So वर्कबुक, वर्कशीट और सेल्स का जो है कॉन्सेप्ट आपको अज्यूमिंग की जो है ना आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद डेटा अगर आपने एंटर करना हो, अगेन यू कैन एक्चुअली enter data as text over here and numbers over here as well. So let's say कि अगर आपने एक लिस्ट बनानी है, let's say सीरियल नंबर की और नेम्स की, ठीक है। So आप यू कैन से कि मैं एक नामों की लिस्ट बना रहा हूँ मोहसिन और let's say साद, ठीक है, और let's say सलीम, फैजान। Okay, so these are the different names. अब one way to actually put in the numbers could be कि आप ये 1, 2, 3 जना करके ये numbers डालें, और let's say कि ये list अगर लंबी है तो that might become problematic, ठीक है। On the other hand, जो numbers related drag and drop facilities हैं in Excel वो काफी अच्छी हैं। For example, मैं यहाँ पर 1 और 2 खाली डालता हूँ, और if I drag and drop this all the way down till here, तो आप ये देखिए कि इसने ये सारी सीरीज जो है पूरी कर दी। सो लेट्स से कि मैं अगर इस रिपोर्ट के अंदर दोबारा जाऊं और यहाँ पर मैंने किसी किस्म का इंडेक्स जो है वो इंसर्ट करना है, लेट्स से कि ये इंडेक्स है, एंड आई वुड से कि अच्छा यार ये इंडेक्स जो है ना इसको तुम नीचे तक जो है ना मुझे पॉपुलेट करके दो। तो देयर इज वन वे ये है कि मैं 1 और 2 लिख के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं, जिस तरह कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप ये देखें 942 रोज का जो इंडेक्स है ये मैंने क्रिएट कर दिया। ऑन दी अदर हैंड आप ये भी कर सकते हैं कि इस 1 और 2 को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर लोअर राइट कॉर्नर में इस जगह पर यू सी अ स्मॉल ग्रीन बॉक्स, दिस वन यहां पर। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप ये देखिए कि ये भी एग्जैक्टली वही काम करेगा जो कि मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप से किया, ठीक है। सो इस तरह के निफ्टी टूल्स जो है ना वो बेसिकली एक्सेल के अंदर अवेलेबल होते हैं, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्चुअली क्विकली डू स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द डेटा, ठीक है। उसके बाद लेट मी एक्चुअली अनडू दिस ऑल ऑफ इट, तो मैं डिलीट कर देता हूं उसको। फिर लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट फॉर्मेटिंग सेल्स। सेल्स को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, उनकी जो है ना फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर एंड फिल कलर, जो कलर फिलिंग होती है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। सो इफ यू लुक एट द टॉप, यहाँ पे डिफरेंट टैब्स अवेलेबल है। नाउ ऑल ऑफ दीज टैब्स आर जिसे कहते हैं ना इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज विद इन एक्सेल। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका होम का टैब है तो इसमें फिर सब सेक्शन है, देयर इज अ फॉन्ट सेक्शन, अलाइनमेंट का सेक्शन है, डेटा टाइप कौन सी होगी डेटा की उसका सेक्शन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपने लगानी हो, फॉर्मेट एज अ टेबल, ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि आई ब्रीफली एक्सप्लेन कि ये टेबल में क्या फर्क है। वैसे तो ये ऐसे लग रहा है कि ये विजुअली एक टेबल ही है, लेकिन एक्चुअली में जब आप एक्सेल के अंदर एक टेबल को एक्टिवेट करते हैं तो उससे एडिशनल आपको कंट्रोल्स अवेलेबल हो जाते हैं जो कि इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहे। फिर अगर आपने लेट्स से क्विक स्टाइल्स जो हैं उनको जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना हो, ये जो है एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सेल्स को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, उनको मूव करना है, यू कैन डू दैट। फिर एडिटिंग के कुछ ऑप्शंस हैं, डेटा एनालिसिस के कुछ ऑप्शंस हैं। फिर इसी तरह इंसर्ट है, अगर आपने डेटा इंसर्ट करना हो, पेज लेआउट का टैब है कि लेआउट पेज की कैसे होगी। प्रिंटिंग जो है एक काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है इन एक्सेल, जनरली लोग इसके साथ बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं स्ट्रगल करते हैं। अगर आपको बेसिकली मार्जिन वगैरह सही तरह सेट करते हैं आती हो, ओरिएंटेशन मैनेज करने आती हो अपनी एक्सेल की शीट की, और प्रिंटिंग के जो ऑप्शंस हैं
उनको बेसिकली इसी तरह मैनेज करना आता हो तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। फिर देन देयर अ फॉर्मूलाज टैब। एक चंद फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा नंबर्स के ऊपर। डेटा का टैब है। हाँ, यहाँ पर जो है हम एंड पे आएंगे। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप पावर क्यूरी जो है बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जिस तरह पावर बीआई के अंदर आप कर सकते हैं, आप एक्सेल में भी काम कर सकते हैं। इसको मैं ब्रीफली टच करूंगा। सो ये सारे टैब्स जो हैं दे आर प्राइमरली ओवर हेयर बिकॉज इनके अंदर इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ हो सकता है टैब्स आप लोगों को नजर भी ना आ रहे। हो सकता है आप लोगों को शायद पावर पिवट का टैब शायद नजर ना आ रहा हो, इंक्वायर का ना हो, बट इट कैन डिफर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओवर हियर। पहले मैं होम के टैब पे ही ना लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट कि यार आपने हाउ डू यू फॉर्मेट सेल्स। सो लेट्स से कि अगर आपने एक इंडिविजुअल सेल को जो है ना फॉर्मेट करना है, तो यू कैन क्लिक ऑन दैट सेल एंड देन यू कैन एक्चुअली गो टू दिस फॉन्ट सेक्शन। यहाँ पर यू कैन डिसाइड कि अच्छा यार इसका फॉन्ट जो है वो क्या होना चाहिए। एज यू कैन सी कि मैं यहाँ पे इसके फॉन्ट के साथ हूँ टेम्पर कर रहा हूँ। उसके अलावा ये है कि लेट्स से अगर आपने फॉन्ट को इंक्रीमेंटली खुद बढ़ते हुए देखना हो तो ये जो ए का निशान है विच हैज लाइक एक्सपोनेंट राइट नेक्स्ट टू इट, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट। ये एक पूरी सिलेक्शन के ऊपर भी हो सकता है। Let me actually show you. तो लेट्स से कि अगर हमने एक पर्टिकुलर सिलेक्शन का जो है ना फॉन्ट बड़ा करना है तो यू कैन एक्चुअली डू दैट एज वेल, एज यू कैन सी। ठीक है, उसके अलावा अगर जो है आपकी कलर की किसी किस्म की फॉर्मेटिंग है, यू कैन एक्चुअली लेट्स से कि आपने एक पर्टिकुलर सेल को या सेट ऑफ सेल्स को कलर जो है ना कोई देना है, यू कैन एक्चुअली सिलेक्ट फ्रॉम दिस पेंट का जो आइकन है, यहाँ से आप बेसिकली सिलेक्शन कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि अच्छा यार इसको जो है ना लाइट ग्रीन करना है। एक तरीकाकार तो ये है, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगती है ब्रीफली मैं दिखाऊंगा आपको, बट दिस इज वन वे कि आप कलर ऐड करें। ये सेल का कलर चेंज हुआ। अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं विद इन द सेल उनका अगर आपने कलर चेंज करना है तो यू हैव टू गो टू दिस ए ओवर ए। सो यहाँ ए पर जाकर मैं ये कहता हूँ कि यार इसको येलो कर, तो आप ये देखें कि ये अब टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है, जो सेल का फिल है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा अलाइनमेंट की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, सो लेट्स से कि ये सिटी का पूरा कॉलम है, इसकी मैंने अलाइनमेंट मैनेज करनी है। राइट नाउ आई थिंक इट्स अलाइन टू द लेफ्ट। सेंटर अलाइनमेंट जो है वो हम देख लेते हैं, ये यूं होगी। राइट अलाइनमेंट जो है वो यूं होगी। उसके अलावा आपके सेल के अंदर जो कि शायद अभी शायद आपको नजर ना आ रहा हो, बल्कि उसका एक मैं एग्जांपल बना लेता हूँ। सो लेट्स से कि आपके पास एक टेक्स्ट है which goes something like this: motion excelcourse. That's interesting. इसको ऊपर की तरफ पता नहीं क्यों मूव करी जा रहा है, इंटरेस्टिंग है। Yeah, much better. Sorry, I actually forgot the alt command. So motion moves और so let's say कि आपके पास ये टेक्स्ट जो है ना वो इसको स्पेस तो आप ये देखें while looking at this it's actually right at the bottom of the cell। तो अगर आपने इसका जो प्लेसमेंट है वर्टिकली अगर आपने मैनेज करनी है तो यू कैन एक्चुअली यूज दीज ऑप्शंस। सो ये देखें अभी सेंटर लाइन में यानी कि सेंटर लाइन का मतलब ये है कि ये वर्टिकली सेंटर लाइन हो गया। अब अगर इसको हॉरिजॉन्टली मैंने सेंटर लाइन करना हो तो आई वुड एक्चुअली यूज दिस अलाइनमेंट। सो एज यू कैन सो ये बेसिक सी मैनेजमेंट है जो कि आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेल को मैनेज करना हो तो उसके कंटेंट को मैनेज करना हो कि वो कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, बिकॉज देयर वुड कम अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पर आपको बेसिकली जो है ना ये छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि एक सेल के अंदर एक ही जो है ना बेसिकली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पड़ी हो, उसके अंदर इस तरह जो है ना स्टैक्ड इंफॉर्मेशन भी पड़ी हो सकती है। तो विजिबली उसको अपीलिंग बनाने के लिए आपको अलाइनमेंट मैनेज करनी पड़ेगी। उसके अलावा फिर जो रैप टेक्स्ट है ये एक अच्छा जो है ना ऑप्शन है, टूल है, अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, एज यू कैन सी कि ये टेक्स्ट जो है ये ओवर डिफरेंट जिसे कहते हैं ना कॉलम्स जो है ना ये ऐसे महसूस हो रहा है कि उनके ऊपर ओवरराइट कर रहा है। ये एक्चुअली ऐसे हो नहीं रहा।
हो ये रहा है कि जो है ये ओवरलेस ने जरूर क्रिएट कर दिया, लेकिन ये पड़ा हुआ एक ही सेल के अंदर। सो अगर मैं इस वाले सेल के अंदर या इस वाले कॉलम के अंदर आके क्लिक करने की कोशिश करूंगा, तो ये वाला सेल जो है या ये वाला जो सेल जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसने एक्चुअली इसको ओवरलैप किया। सो इसका एक अच्छा तरीकेकार ये होता है कि आप टेक्स्ट को रैप करके रखें। टेक्स्ट रैप का फायदा ये होता है कि अगर मैं इसको टेक्स्ट रैप करूंगा तो आप ये देखेंगे कि एक सेल की कंफाउंड्स के अंदर जो है बेसिकली अपने आप को रोक लेगा, वो इससे ओवरलैप नहीं क्रिएट करेगा। सो टेक्स्ट रैप जो है स्पेशली लॉन्ग टेक्सचुअल डेटा को मैनेज करने के लिए टेक्स्ट रैप जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और ये आपको बेहतर मैनेज करने में टेक्स्ट को जो भी कंटेंट है आपके सेल्स का उसको हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम डेटा टाइप्स देख लें, फॉर एग्जांपल यू कैन डिसाइड कि एक पर्टिकुलर जो है डेटा पॉइंट की डेटा टाइप क्या है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस डेट के कॉलम को सिलेक्ट किया तो ये सिर्फ जनरल आ रहा है। आई कैन गो इन एंड टेल एक्सेल की अच्छा यार ये शॉर्ट डेट है, उसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करो। अब जब मैंने इसे शॉर्ट डेट के अंदर कन्वर्ट किया तो इसने बेसिकली इसको डेट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और डेट फॉर्मेट किस तरह है, इट्स द डे, द मंथ एंड देन द ईयर। ठीक है, इट्स फॉलोइंग दिस कन्वेंशन ओवर हियर। जो मेरे ट्रे के अंदर, जो मेरे सिस्टम ट्रे के अंदर जो डेट का फॉर्मेट पड़ा हुआ है, ये इसको फॉलो करना है। लोअर राइट कॉर्नर में अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा हो, यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो है ना डेट जिस फॉर्मेट में है वही डेट का फॉर्मेट यहाँ पर है। उसके बाद जो है अगर और डेटा टाइप्स आपने यूज करनी हो या चेंज करना हो किसी को, फॉर एग्जांपल अगर मैं वैसे अभी ये यहाँ जनरल नजर आ रहा है, लेकिन द पॉइंट इज कि मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अच्छा यार इट्स सपोज टू बी लेट्स से अ फ्रैक्शन, so you can see it has converted it into fractions. Additionally, you can actually convert it into a whole number. Whole number, sorry, मैंने whole number नहीं करना, sorry. होल नंबर, हाँ, होल नंबर या अकाउंटिंग का नंबर। अकाउंटिंग नंबर के केस में जो है इसके साथ जो है बेसिकली जो भी आपने करेंसी डिनोमिनेशन सेट की होती है वो बेसिकली यहाँ पर अटैच हो जाती है। ठीक है, सो इट बिकम्स एन अकाउंटिंग नंबर। अच्छा, इसके अंदर जो है इसको अगर मैं नंबर करता हूँ, चाहिए इसके डेसिमल्स हैं उनको होगा। नंबर फॉर्मेट्स के लिए मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, और मैं खैर डेसिमल प्लेसेस की जो रिमूवल है उसका एक और तरीकेकार यहाँ पर भी अवेलेबल है। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, उस विंडो के अंदर से भी। लेट्स से कि अगर मैं डेसिमल्स को रिमूव कर देता हूँ तो ये देखिएगा कि डेसिमल इसके बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीकेकार ये है कि अगर मैंने डेसिमल्स को रिमूव करना है और इसको एक एक होल नंबर बनाना है, तो आई कैन एक्चुअली यूज दीज बटन ओवर हियर। अच्छा, ये इसको मुझे जनरल होने की वजह से शायद यूज नहीं करने देगा, सो आई कन्वर्ट दिस इनटू नंबर एंड देन डिसाइड देन चेंज इट। आप ये देखें, सो ये मुझे डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। प्लस क्विक फिक्स इसका ये है कि आई थिंक व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली जस्ट क्लिक ओवर हियर। तो आप ये देखें कि ये जो है एक होल नंबर, अकाउंटिंग होल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो अगेन दीज आर लाइक डिफरेंट ऑप्शंस जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज करके अपने नंबर के फॉर्मेटिंग को तेजी से तब्दील कर सकते हैं। ये जो करेंसी जिसकी मैं बात कर रहा था, वो करेंसी की डिनोमिनेशन जो है यहाँ पर अवेलेबल होती है। यू कैन क्लिक ओवर हियर, क्लिक ऑन दिस। तो आप ये देखें यहाँ पे हम डॉलर का साइन जो है इसके साथ अटैच हो गया। सो दिस इज एक्चुअली अ डॉलर अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। सो स्मॉल बट necessary tweaks that you might need to make to your data before you go into presenting it. Highlight the cell when it is greater than or less than or between or equal to or contains a certain text or a certain date is occurring or duplicate values. So let's say if it's greater than what? Agar if it's greater than 1,000, so fill it with let's choose yellow, fill with dark yellow text because that is not going to be visible. And actually custom format. Bold, still is supposed to let's say it's going to be अच्छा, मैंने वो सॉरी मैंने एक कॉलम सेलेक्ट ही नहीं किया था। I'll have to write this again.
सो टोटल सेल्स के ऊपर जो है एक्चुअली इम्प्लीमेंट दिस लॉजिक। तो अब आप ये देखें कि इसमें जो है ग्रेटर देन 46 15.395 तो खुद ही एक एवरेज सी वैल्यू निकाल रही है और उसके ऊपर जाना वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे क्या चेंज इट टू 1000। सो आई वुड सी अ लॉट ऑफ नंबर्स जो कि रेड है। लेट्स से कि इफ इट्स लेस देन 1000 जो है कंडीशन उसको रिमूव नहीं किया। लेट मी डू इट अगेन। इट्स लेस देन ओके। सो ये इफ देन एल्स की बेसिस के ऊपर यू कैन एक्चुअली परफॉर्म कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि इफ अ पर्टिकुलर set of conditions are met or a single condition or a set of different conditions are met, you can actually perform different transformations on your data। उसको bold कर सकते हैं, numbers को colored कर सकते हैं, so on and so forth। so ये basically what conditional formatting does। and off the shelf आपको काफी सारे available होते हैं conditional formatting के you would say templates। so for example यहाँ पर मैं equal to in fact not equal to मैं equal condition यहाँ पे negotiable तो it's between। so let's say कि the value of total sales is between 1500 and 2500। so उस केस में just go ahead and green fill with dark green text। तो आप ये देखें it's another condition जिसके जरिए फायदा इसका ये है कि इट वुड एक्चुअली मेक इट इजियर फॉर योर ऑडियंस टू आइडेंटिफाई डेटा। नाउ अगेन ये डेटा समराइज हो सकता है मुख्तलिफ तरीकों से और फिर उसके ऊपर ये आइडेंटिफिकेशन लगाई जा सकती है। दैट वुड मेक इट मच मोर इजियर फॉर द ऑडियंस टू आइडेंटिफाई डेटा। बट अगेन जिसके जरिए या जिस ऑप्शन के जरिए ये लगाई जाती है दैट्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। इसके बाद आई सेड के देयर आर सर्टेन कैपेबिलिटीज जो कि एक टेबल को अवेलेबल होती हैं इन एक्सेल। राइट नाउ दिस इज नॉट अ टेबल। ये जो आपको डेटा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एक टेबल नहीं है। इन फैक्ट and then let's change it back to all right। so this looks like a table but this is not a table। so let me go ahead and make this selection। मैं सारे के सारे को select कर लेता हूँ and then let me change this into a table। अच्छा सबसे पहला जो बेनिफिट आपको हुआ है वो ये हुआ है कि आपका जो लाइक फॉर्मेट था दैट हैज कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू अ टेबल। उसके अंदर जो है बेसिकली यू हैव कलर्ड हेडर्स और अगेन अगर इफ आई चेंज द चॉइस दैट आई मेड आई कैन एक्चुअली मेक इट मच मोर बेटर। वो कैसे? अगर मैं लेट्स से कि इसको दोबारा जाता हूँ सिलेक्ट करता हूँ एंड आई वुड गो अहेड एंड सिलेक्ट दिस ऑप्शन एंड आई प्रेस ओके। तो आप ये देखें कि आपके पास जो है ना बेसिकली ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एक टेबल क्रिएट हो गया। सो एक तो फायदा ये है कि इट्स विजुअली मोर अपीलिंग प्लस ये कि आपको टॉप पर ऑटोमेटिकली ये फिल्टर्स अवेलेबल हो गए जिनके जरिए आप जो है ना अपने डेटा को स्लाइस कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट ऑन इन एडिशन टू दैट अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो इस टेबल के अंदर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक टेबल डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है और दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल बिकॉज इसके अंदर एक स्लाइसर का जो है ना ऑप्शन अवेलेबल है। सो अगर ये मैंने टेबल फॉर्मेट मैंने इसको अंडू किया है और नॉन टेबल फॉर्मेट में ले गया हूं तो आप ये देखेंगे यहाँ पर मुझे इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आया। बट एज सून एज आई एक्टिवेटेड दिस एज अ टेबल तो मैं जो हूँ बेसिकली टेबल की जो प्रॉपर्टीज है उनमें से स्लाइसर्स जो है ना वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। स्लाइसर्स क्या है? सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस कैटेगोरिकल या लेट्स से न्यूमेरिकल वेरिएबल की बेसिस के ऊपर भी मैं जो है ना अपने इस टेबल को फिल्टरेबल बनाना चाहता हूँ। सो रादर देन योर ऑडियंस एक्चुअली गोइंग इन एंड सिलेक्टिंग कि यार अच्छा अब इस डेट का मुझे दिखा दो, अब मुझे लेट्स से कि इस कंट्री का दिखा दो डेटा,
या इस स्टेट का डेटा दिखा दो, आई कैन एक्चुअली जस्ट इंसर्ट सिंपली अ स्लाइसर ओवर हियर। सो मैं इसको ये कहता हूँ कि अच्छा मुझे कंट्री और स्टेट और सिटी के स्लाइसर चाहिए। तो आप ये देखें कि ये 3 स्लाइसर्स मुझे यहाँ पर अवेलेबल है, and I can actually quickly filter my data on the basis of that slices or the combination of those slices. I hope that makes sense. ठीक है? So let's say कि US के मुझे जो है ना सारे so US के जो सारे स्टोर्स हैं मुझे खाली वो दिखाओ, या इनफैक्ट लेट्स से मैं जो कनाडा के सारे स्टोर्स दिखाओ, ये सारे जो है कनाडा के स्टोर्स हैं, जस्ट लाइक अ बंच ऑफ देम। इनफैक्ट इसका काउंट भी देख लेते हैं। 47 स्टोर्स हैं कनाडा के, और इसमें जो है ना मुझे एडमॉन्टन के जो है ना स्टोर दिखाओ। तो एडमॉन्टन में ये 3 स्टोर हैं। सो अगेन आपका जो रॉ डेटा है उसके ऊपर अगर आपने फिल्टर्स जो है ना अवेलेबल करने हैं और इजी यूज जो है ना बेसिकली वो इम्प्लीमेंट करना है, तो एक अच्छा तरीका हो सकता है कि रादर देन फोर्सिंग योर ऑडियंस टू गो थ्रू दीज स्लाइसेस एंड देन मेकिंग दो सिलेक्शन, सिंपली यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आप ये स्लाइसेस जो है अवेलेबल करें। और इन स्लाइसेस को अवेलेबल करने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले जो है ना अपने डेटा को एक अदर टेबल के अंदर कन्वर्ट करें या टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। ठीक है? सो ये टेबल की एक खसूसियत है। इसके अलावा जो है so when you say that I'm about to summarize data, there is going to be a set of conditions that needs to be met. My question would be okay, let's try to do that over here. Undo करते हैं पहले, and let me actually remove this from the table format. And I want to move this back into I'm actually just trying to remove this इसका जो बेसिकली टेबल वो है जो लगा है। I do recall अवेलेबल कैसे टेबल डिजाइन पे मिलता है। सो बेसिकली अब जो है ये नॉर्मल रेंज के अंदर कन्वर्ट हो गया। yes, इसके साथ बेसिकली फॉर्मेटिंग अभी भी वही लगी है, लेकिन इट्स एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल रेंज। सो व्हाट इफ आई गो अहेड एंड पिवट ऑल ऑफ दिस डेटा। सो पिवट बताना जो है सब लाइक आई एम जस्ट ब्रीफली गो थ्रू इट। सो व्हेन आई से कि आप डेटा को पिवट कर रहे हैं, सो यू आर एक्चुअली समराइजिंग द डेटा, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। लेट्स से कि आपके पास ये डेटा सेट है, इसके अंदर आपको कौन से वो एलिमेंट्स नजर आते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप डेटा को समराइज कर सकते हैं। So we have country, store, city, state, web order, web sale, total orders, total sales. So how would you structure your pivot? So let's say कि आपने अपनी sales देखनी है, तो मैं जो टोटल सेल्स को वैल्यूज में डाल देता हूँ, तो ये अभी एक सिंगल नंबर आ रहा है। What are the different criteria जिसकी बेसिस पे मैं इस डेटा को देख सकता हूँ? So this is you slice your fact values. So देखें ये जो मैंने टोटल सेल्स डाली है ना यहाँ पे, this is actually a fact, ठीक है? And I can slice this fact on the basis of different dimensions, like country. So my country is actually a dimension. My store or city is actually also a dimension. So Canada के अंदर इन सारे stores के अंदर जो सेल्स है वो बेसिकली देखें, इफ आई वर टू टेक आउट दीज डायमेंशंस, इस नंबर की मेरे पास इस नंबर की मेरे लिए कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। 2051708 मुझे यस पूरा सम तो बता रहा है, लेकिन
व्हाट इफ आई वांट टू सी माय परफॉर्मेंस एट अ ग्रैनुलर लेवल, मेरी जो लेवल ऑफ ग्रैनुलरिटी है डेटा की, मैं उसको निचले लेवल पे देखना चाहता हूँ. सो फॉर दैट आई वुड नीड टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ डायमेंशंस. फॉर एग्जांपल आई वुड नीड टू ऐड कंट्री. सो कंट्री वाइज मेरी सेल कितनी रही है, आई कैन सी दैट. मेरी स्टेट वाइज सेल कितनी रही है, आई कैन सी दैट. मेरी सिटी वाइज सेल कितनी रही है, नाउ आई कैन सी दैट एज वेल. सो यू सी दिस हायरार्की डेवलपिंग over here in fact यहाँ पर, and it's because I have put in the country, then the state, then the city, and now I am going to put in the store as well. So now for every city I am actually also able to see कि उसके अंदर जो stores थे उन्होंने कैसे perform किया. So the whole point over here is कि this total sale number is of no use unless and until मैं उसको किसी न किसी dimension के ऊपर स्लाइस और डाइस नहीं कर. ठीक है. सो जो पिवट टेबल होता है वो प्राइमरीली आपको ये काम करने में हेल्प करता है कि आप अपने डेटा को जो है ना समराइज कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस. ठीक है. सो स्टेट, सिटी, उसके अलावा जो है अपना स्टोर नंबर, कंट्री, दीज आर डायमेंशंस. डायमेंशंस आर यूजुअली नॉन न्यूमेरिकल. दे आर यूजुअली नॉन न्यूमेरिकल, दे आर यूजुअली कैटेगोरिकल इन नेचर. उनसे किसी न किसी तरह की कैटेगरी जो है वो बेसिकली डिफाइन हो सकती है. वेयर एज जो फैक्ट्स होते हैं, जो कि हमारे केस में टोटल सेल्स है, इज प्राइमरीली इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है. सो पिवट टेबल जो है आपको प्राइमरीली फैसिलिटेट करता है इन एक्चुअली परफॉर्मिंग these summarizations, and it's just a very powerful tool. मतलब आई वुड से कि लॉट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है ना वो बेसिकली उस पर जो काम है वो बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ इस वजह से बिकॉज ये पिवट की जो है ना फैसिलिटी अवेलेबल है. और यही पिवट जो है ये पावर बीआई के अंदर भी अवेलेबल है मुख्तलिफ तरीकों से. देयर आर मैट्रिक्स विजुअलाइजेशन. फिर जो ईटीएल का काम है उसके अंदर जो है ना भी आप पिवट या ग्रुप वाइज बना सकते हैं. सो ये जो है दिस इज व्हाट अ पिवट डज. एडिशनली I would move ahead और मैं ये देखता हूँ कि और क्या चीजें जो है ना वो यहाँ पर हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन एक्चुअली develop pivot tables, and we can actually develop pivot tables which are supported by visualizations as well. So ये काम भी आप एक्सेल के अंदर कर सकते हैं. फिर अगेन द पेज लेआउट इटसेल्फ, अगर आपने इसको चेंज करना हो, इसकी ओरिएंटेशन आपने चेंज करनी हो, यहाँ पर तो खैर इसका आपको फर्क नजर नहीं आएगा. जो चीज सिर्फ आपको चेंज होती हुई नजर आएगी, फॉर एग्जांपल जब मैंने ओरिएंटेशन को चेंज किया है तो जरा गौर कीजिएगा इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर. ठीक है. जब मैं अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करता हूँ तो आप ये देखें कि मुझे लैंडस्केप ओरिएंटेशन के अंदर यहाँ पर एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है. अब ये डॉटेड लाइन क्या चीज है, ये बेसिकली आपका प्रिंटेबल एरिया है. सो अगर मैं वापस से इसको पोर्ट्रेट के ऊपर करूँ और इसको कंट्रोल पी करके प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो आप ये देखें कि मुझे मेरा डेटा जो है एक वर्टिकल फॉर्मेट में नजर आ रहा है. बट इफ आई वर टू गो बैक एंड चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द डेटा टू हॉरिजॉन्टल और फिर मैं कंट्रोल पी करूं तो अब आप देखें कि मुझे अब एक पेज पे ज्यादा जो है डेटा नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरे पेज की ओरिएंटेशन चेंज हो गई है. जो लेफ्ट टू राइट डेटा है वो मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, जो वर्टिकल डेटा है वो मुझे कम नजर आ रहा है. अब ये रिपोर्ट 2-3 पेजों के ऊपर चली जाएगी यूं कर. ठीक है. सो अगेन जस्ट अ फ्यू एडजस्टमेंट ऑप्शंस जो कि आप एक्सेल में जो है ना आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप व्हेन यू ट्राइंग टू प्रिंट स्टफ. इसके अलावा व्हाट एल्स, yeah, let's look at some basic excel के formulas. तो by definition अगर आप statistics के point of view से पढ़ें तो average is the measure of central tendency in every data. किसी भी डेटा सेट के अंदर जो उसका सेंट्रल पॉइंट है वो एवरेज से कैलकुलेट होता है. ठीक है. और इसको एग्जीक्यूट करने का तरीकाकार ये है कि एक्सेल के अंदर if you were to call a formula, उससे पहले you need to put in an equal sign or a plus sign. ठीक है. यूजुअली पुरानी कन्वेंशन में प्लस का साइन इस्तेमाल होता था, जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि मुझे फॉर्मूलाज कॉल हो रहे, लेकिन अब यूजुअली इक्वल का साइन इस्तेमाल. सो एवरेज को जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पर देखें कि एक छोटी सी विंडो खुल गई है. नाउ दिस इज इंटेलिसेंस. ये एक फीचर है जो कि अक्रॉस द बोर्ड डिफरेंट बीआई टूल्स में, माइक्रोसॉफ्ट के बीआई टूल्स में अवेलेबल है मोस्टली. वैसे तो टैब्लू वगैरह में भी है, लेकिन
माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एज अ होल इकोसिस्टम के अंदर अप्लाई किया। सो इंटेलिजेंस आपको क्या बताती है कि आपने जो ऊपर टेक्स्ट लिखा है उसकी बेसिस पे वो सजेशंस दे रही है कि आप क्या चीज प्रॉब्ली जो है ना कॉल करना चाह रहे हैं, और वो जो लिस्ट अवेलेबल होती है इसके अंदर से आप जो है ना फिर अपना फॉर्मूला अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। अब व्हाई इज दिस, ये मैंने क्यों कहा कि अक्रॉस द बोर्ड पूरे इकोसिस्टम में अवेलेबल है, बिकॉज इंटेलिजेंस ना सिर्फ एक्सेल के अंदर अवेलेबल है बट इट इज आल्सो अवेलेबल इन पावर बीआई एंड इट इज आल्सो अवेलेबल इन एसक्यूएल एज वेल, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी ब्रीफली। सो अगर मैंने एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू AVER या एवरेज लिखूंगा, तो मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे एंड देन आई वुड डबल क्लिक ऑन द फॉर्मूला। तो इसके नीचे फिर देखिए कि एक अदद सजेशन विंडो खुल गई है। अब ये सजेशन विंडो मुझे क्या बता रही है, ये मुझे ये बता रही है कि इस फॉर्मूला के आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ये फॉर्मूला कितने आर्ग्यूमेंट्स लेगा। एवरेज के केस में जो आर्ग्यूमेंट है वो मुझे वो ये बता रही है कि यार एक नंबर डालो, ठीक है, और फिर कॉमा डालो और फिर दूसरा नंबर डालो, ठीक है। सो हम ये करके देखते हैं। लेट्स से कि हम टोटल सेल्स का जो पहली रो का नंबर है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये देखें ये वाला सेल L2 जो है अब रेफर होना शुरू हो गया, और मैं कॉमा डालता हूँ और L3 को भी जो है यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ विच इज नाउ माई नंबर 2, और मैं अगर एंटर दबाऊंगा तो इन दोनों सेल्स के अंदर जो नंबर पड़े हुए हैं उनकी जो एवरेज है मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। अब which is 3680.34 plus 1537.51 divided by 2, which should be 2608.925. But what if कि मैंने इस पूरे कॉलम का जो है ना एवरेज निकाला। सो फॉर दैट आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, मुझे सिर्फ एवरेज का फॉर्मूला दोबारा कॉल करना है, ठीक है। और रादर देन के मैं एक एक करके नंबर सिलेक्ट करूं, यहाँ पर मैं यहाँ से इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूं, ऐसे करना। मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं सिलेक्शन के, ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज जनरली अगर आप पहली दफा कर रहे हैं तो आप इसी तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। अब जब मैंने ये रेंज पूरी सिलेक्ट कर ली तो आप अगर इस अपर लेफ्ट कॉर्नर में इस जगह पर देखें तो मुझे मेरा फॉर्मूला नजर आ रहा है। सो मेरा फॉर्मूला क्या कर रहा है, एवरेज ब्रैकेट L2 colon L943, so it's giving me a range, so what it is telling me is कि आपकी पहली वैल्यू L2 में पड़ी हुई थी, आखिरी वैल्यू L943 में पड़ी हुई है, और आपकी जो रेंज है इज इट कंटेन्स एवरीथिंग बिटवीन L2 और L943। सो जहां पर भी आपको फॉर्मूलाज के अंदर कॉलन नजर आए इन एक्सेल दैट मींस कि कोई रेंज कॉल होगी। अब अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो आप अगर यहाँ पर जाके देखें तो मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ दिस इंटायर रेंज जो है अवेलेबल होगी, ठीक है। द एवरेज वैल्यू इज 2178.0340002। इसी तरह देयर इज सम, अगर मैं सम निकालना चाहूँ आई वुड से सम एंड आई वुड सेलेक्ट द होल रेंज। अच्छा, अब पहले तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिया, एक क्विक सिलेक्शन करने का तरीका ये हो सकता है कि यू कैन प्रेस शिफ्ट कंट्रोल एंड देन द डाउन एरो टू सिलेक्ट ऑल ऑफ द पॉपुलेटेड रेंज। तो इस तरह इस सिलेक्शन से यानी कि शिफ्ट कंट्रोल डाउन की से खाली वो सेल सिलेक्ट होंगे जहां पे डेटा पड़ा है। तो अब आप ये देखें ये आखिरी 943 सेल तक ये आ गया है, और मैं अगर एंटर दबाऊंगा तो अब मुझे नजर आएगा 2051708 विच इज द टोटल वैल्यू ऑफ टोटल सेल्स, टोटल सेल्स का टोटल सम, ठीक है। इसी तरह मैक्स और मिन अगर मैंने करना हो, सो लेट्स से कि मैं मैक्सिमम वैल्यू इन दिस टोटल सेल्स रेंज निकालना चाहता हूं, सो आई वुड से इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट एंड गिव दिस entire range and you would see कि maximum value का जो ऑर्डर था, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू की जो सेल है वो $9,187 है, and then I can see the minimum as well by calling the min, the bracket, and then all of this, and now I would see that the minimum sales was 42.99, ठीक है। सो बेसिक जो है बेसिकली बेसिक जो तरीका कार है या बेसिक फॉर्मूला कॉल करने का जो तरीका है वो ये है। अगेन आप बहुत से और फंक्शंस, ये तो मैंने बड़े बेसिक से फंक्शन बताए हैं, आप इधर कॉल कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, काउंट इफ, सम इफ
एवरेज इफ यानी कि कंडीशनल एवरेज, कंडीशनल सम, कंडीशनल काउंट, ये सारे भी यहाँ पर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वो ये है कि मैं यहाँ पर ना एवरेज इफ का एक फॉर्मूला लगा। सो एवरेज इफ हो गई, एंड आई वुड से एवरेज इफ, सो the range is going to be this. So total sales, so मेरा पहला आर्गुमेंट रेंज था, so I'm going to be averaging the values of the total sales range, and my criteria is actually going to be if I remember this correctly, it's going to be this. Let me try this, see if this works. एक सेकंड, अच्छा नहीं, ये सही इतना नहीं लगा फॉर्मूला। मैं जो ना हमेशा ये रेंज और क्राइटेरिया जो है ना इसको आगे पीछे कर देता हूँ। रेंज के अंदर रेंज के अंदर यस, okay. This one. Yeah, sorry about that. So मैंने एक छोटी सी ट्वीक ये की है कि एवरेज इफ्स का फॉर्मूला यूज किया rather than the average if. So ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, what I'm trying to do is I want to average all of the total sales. So it's this column, ठीक है, जहां जहां पर भी जो सिटी है is actually the city of Westmount, यानी कि this city, this one. If I were to go in and change this Westmount to, let's say, Toronto, ठीक है, तो मेरा नंबर चेंज हो जाएगा. So my average would be 2807, and I can actually double check this. How can I double check this कि ये ठीक भी आ रहा है या नहीं आ रहा? I can go over here and add a filter, and then actually go over here and say कि अच्छा यार मुझे टोरंटो जो है खाली उसका जो है डेटा लगा कर दिखाओ, टोरंटो, ठीक है, there it is. ये खाली टोरंटो की सिटी है, और ये जो था इनका टोटल सेल्स का नंबर था which is 2807.45. ये मुझे कहाँ से नजर आ रहा है? मुझे ये यहाँ बॉटम पे नजर आ रहा है. सो लेट्स से कि अगर आप कोई सिलेक्शन करते हैं तो उसका सम, काउंट और एवरेज जो है ये बॉटम के ऊपर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. आप यहाँ से भी टैली कर सकते हैं. तो मुझे पता है कि टोरंटो में जो सेल्स है उसका एवरेज जो है 2807.475 था,
if I were to now remove these filters, I would clear these, तो ये देखेंगे 2807.475 ही यहाँ पर एवरेज इफ्स का फॉर्मूले के अंदर एवरेज आ गई, which is an indicator of the fact कि ये टोरंटो ही की सेल्स को एवरेज कर रहा है. सो अगेन इस तरह जो है बेसिकली आप बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है उनको इस्तेमाल करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है एक्सेल के अंदर वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इसके बाद बेसिक सॉर्टिंग और फिल्टरिंग जो है, जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया कि आप जब किसी भी डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको फिल्टरिंग के ऑप्शन देता है. लेकिन आपने अगर जैसे कि टेबल के अंदर ये किसी डेटा को कन्वर्ट नहीं करना और उसके अलावा भी फिल्टरिंग जो है ना वो इनेबल करनी है, तो आप ये कर सकते हैं कि उसका जो टॉप कॉलम हेडर्स हैं उनको सिलेक्ट करके होम के अंदर यू कैन एक्चुअली गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर, और यहाँ पर यू कैन एक्चुअली एक्टिवेट द फिल्टर डेटा द फिल्टर, और यहाँ से यू कैन एक्चुअली मेक दी सिलेक्शंस जब फिल्टर एक दफा एक्टिवेट हो. फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ये 4 सिटीज का जो है ना डेटा चाहिए, सो यू कैन सी के ये सारा का सारा डेटा जो है इन 4 सिटीज का यहाँ पर फिल्टर हो गया. सो बेसिक फिल्टरिंग जो है दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली अचीव इट. आप मल्टी लेयर फिल्टरिंग भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यानी कि लेट्स से कि आपको एल्बुकर्की और अलेक्जेंड्रिया, एलेबामा, एलेनटाउन, मेरिलियो और इनका जो है डेटा चाहिए था, प्लस फिर इनके अंदर जो है आपको पर्टिकुलर स्टोर्स का डेटा चाहिए था, तो आप जो है यहाँ से वो सिलेक्शन भी कर सकते हैं इन 4 स्टोर्स की. सो ये अब ड्यूल फिल्टर इसके ऊपर लगा, इसके ऊपर पहला फिल्टर लगा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सिटी और दूसरा फिल्टर लगा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर. ठीक है. सो ये बेसिक फिल्टरिंग जो है वो है जो है आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज बेसिक फिल्टरिंग. अच्छा, इसके अलावा जो है व्हाट अबाउट बेसिक चार्ट्स. कुछ बेसिक चार्ट्स अगर हम देख लें, so let me actually clear out these filters first. Right, let me actually go over there and shut down all of the filters. ठीक है. So let's assume कि I want to see a state-wise, visualization of my total sales. अब उसका सबसे आसान तरीका ये है, which I recommend is कि let's say कि मैं जो हूँ पहले जो है स्टेट को सिलेक्ट कर, let's try this, और उसके बाद जो है मैं जो है ना टोटल सेल्स को सिलेक्ट कर लूँ. अब प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे ही ये सिलेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो जो आपकी पिछली सिलेक्शन थी वो जो है ना अनसिलेक्ट हो जाएगी. तो एक आसान तरीकाकार तो ये हो सकता है कि आप इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से कॉपी करें और एक नई शीट के अंदर ले जाएं और यहाँ पे जो बीच की इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट कर दें, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है उसको डिलीट कर दें, और उसके बाद आपके पास ये दोनों कॉलम यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं जिनके ऊपर आपने डेटा बनाना है. सो लेट्स से कि आप इस सारे को सिलेक्ट करते हैं and then you go ahead and go into insert, और सबसे पहले let's look at some of the recommended charts. ये recommended charts के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली आपको कुछ recommended charts जो है ना यहाँ पर नजर आएंगे. अब इन चार्ट्स का जो है ना बेसिकली वैसे मुझे कोई खास जो है यूजेज, हाँ सेकंड चार्ट का वैसे नजर आ रहा है. अक्सर रिकमेंडेशंस अच्छी होती हैं, अक्सर जो है ना बेसिकली आपको कस्टम खुद का चार्ट जो है ना पूरा बनाना पड़ता है. सो राइट नाउ अगर मैं खाली इस जो है ना ये जो रिकमेंडेड चार्ट है इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप ये देखें कि इसने एक छोटा सा जो है ना यहाँ पे विजुअल जो है ना क्रिएट कर दिया. आई थिंक उसको ले जाने की जरूरत है यहाँ पर, बहुत बड़ा करने की जरूरत. तो आप ये देखें कि अब आपको स्टेट वाइज जो है एक टोटल सेल्स जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है. इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे एक्स्ट्रा नजर आ रही है, कुछ जो है वो कम नजर आ रही है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऐड करने की जरूरत है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि रिमूव करने की जरूरत है. फॉर एग्जांपल कुछ बेहतर होगा अगर यहाँ पर मुझे डेटा लेबल्स नजर आते हैं. डेटा लेबल्स का मतलब ये है कि मुझे इन डेटा पॉइंट्स का या ये जो बार्स हैं इंडिविजुअल इन ये किस डेटा पॉइंट को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं या टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मुझे अगर टोटल नजर आ जाए दैट वुड बी ग्रेट. एक तरीका तो ये है इफ आई कैन होवर ऑन द ऑन द बार, मुझे नजर आ रहा है कि ये दिस इज द वैल्यू फॉर द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, sorry for the state of New York and the total is 19,000
sorry 1,95,279 और in addition to that अगर मुझे यहाँ पे डेटा पॉइंट ऐड करना हो तो आई कैन गो ओवर हियर एंड क्लिक ऑन दिस प्लस साइन एंड से कि अच्छा यहाँ पे डेटा लेबल्स अटैच। अब डेटा लेबल्स जो हैं वो क्योंकि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो इसलिए यू माइट नीड टू ट्वीक दिस अ लिटिल बिट, बट डेटा लेबल्स जो हैं आप अटैच कर सकते हैं अपने डेटा के साथ। अच्छा इसके अलावा जो आई थिंक ये जो एक्यूमुलेटिव लाइन है ऑफ परसेंटेज, आई थिंक ये मुझे शायद जरूरत नहीं है, सो आई कैन ट्राई टू रिमूव दिस। आई थिंक इसको रिमूव करने का तरीका कार ये है कि आप इसे सिलेक्ट करें यहाँ से और यू कैन सिंपली ट्राई टू डिलीट दिस इफ इट एक्चुअली अलाउज मी टू डू दैट। let's say like this। so अब आप ये देखें कि ये ग्रेडियंट लाइन जो है यहाँ से रिमूव होगी। सो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमम जो है ना तरीका या मोस्ट ऑप्टिमम विजुअलाइजेशन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज के दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली गेट स्टार्टेड विद मेकिंग विजुअलाइजेशन। जो सिस्टम या जो एक्सेल जो है जो चीज रिकमेंड कर रहा होता है, ट्राई टू एक्चुअली यूटिलाइज दैट। उसके अलावा जो है लेट्स लुक एट सम अदर विजुअलाइजेशंस एज वेल। सो लेट्स से कि मैं दोबारा ये सिलेक्शन करता हूं एंड गो इनटू इंसर्ट, कैन आई मेक सम सॉर्ट ऑफ अ डोनट चार्ट। सो डोनट चार्ट जो है, डोनट चार्ट या जो बेसिकली आपका जो पाई चार्ट होता है उसको यूज करते हैं। लेट्स से मैं डोनट चार्ट को पहले यूज करता हूँ। जो डोनट चार्ट है ना, जो डोनट चार्ट है या जो आपका बेसिकली जिसे कहते हैं पाई चार्ट, they represent 100%, the whole pie represents 100%. So when your data set is actually उसके जो values हैं वो किसी percentage value में है, तो in that case आपका जो डोनट चार्ट है वो सबसे बेस्ट काम करे, ठीक है। सो इसी वजह से जो लाइक आपकी स्टेटिस्टिक्स की कम्युनिटी वगैरह ना उसमें डोनट चार्ट्स को जनरली जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना पसंद नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये मिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। सो डोनट चार्ट जनरली जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं उस केस में जब आपके परसेंटेज। उसके अलावा अगर लेट्स लुक एट सम अदर विजुअलाइजेशंस एज वेल। लेट मी गो टू इंसर्ट एंड लेट्स सी कि मैं अगर कोई जो है ना यहाँ पर स्पार्क लाइंस वगैरह जो है वो ऐड करने की कोशिश करूँ। स्पार्क लाइंस यहाँ पर ऐड नहीं होंगी, इसकी वजह ये है कि दिस इज नॉट टाइम सीरीज डेटा। अगर इस डेटा के अंदर टाइम का एलिमेंट होता, ऑल्दो यहाँ पर टाइम का एलिमेंट है इफ यू लुक एट दिस डेटा, बट दिस डेट इज अ सिंगल डेट, तो इसलिए मुझे ओवर टाइम अगर मैंने डेटा को दिखाना हो तो मैं जो हूँ ये जो आपका लाइन चार्ट्स है इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी मेरे पास एक्चुअली एग्जांपल नहीं है बड़ी हुई हैंडी, बट आई कुड हैव एक्चुअली शोन यू दैट। अनदर अल्टरनेट अवेलेबल फॉर your donut chart या sunburst chart, sorry not the sunburst chart, जो donut chart की alternate जो है वो आजकल जो available है, that is actually the tree map। let's see if it actually allowed me to make the tree map। अच्छा अब इसके अंदर अगेन वही बात है कि since there are so many categories, so इसलिए जो है ना आपको tree map जो है वो इस तरह नजर आ रहा है, but what this is representing is कि ये जो छोटे छोटे cubes बने हुए हैं, these are your these are your states in both the cities, in both the countries। और ये जो states हैं ये basically divide हुई हैं into different chunks। और ये जो chunk है, ये जो chunk का size है, ये basically आपकी जो sales है उसकी value को represent करता है। so जितना बड़ा chunk होगा उतनी बड़ी जो है basically आपकी जो है वो उतनी ज्यादा एक्चुअली सेल होगी इन अ पर्टिकुलर स्टेट। अब ये भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर तरीकेकार ये हो कि अगर हम इस डेटा को किसी तरह समराइज कर लें पहले और फिर जो है बेसिकली इसको दिखाएं, बिकॉज यहाँ पे देखें ओंटारियो जो है वो 5-6 दफा है। अब जो डोनट चार्ट था या जो बेसिकली आपका चार्ट था ऑफ ये जो मैंने आपको ट्री मैप दिखाया था, ये बेसिकली डेटा को ग्रुप नहीं करता पहले, ये हर इंडिविजुअल रो आइटम को सेपरेटली एज अ क्यूब दिखाता है, ठीक है। तो उस केस में दोज विजुअलाइजेशंस बिकम वेरी इनइफेक्टिव, अनइफेक्टिव, ठीक है, या इनएफिशिएंट। सो अगर मैं ये करूं कि पहले इन सबको ग्रुप कर लूं, तो इफ आई वर टू सिलेक्ट ऑल ऑफ दिस, insert some sort of a pivot table first,
और यहाँ पर मैं जाऊँ और इसको पिवट लगाऊं और मैं ऐसा करूँ कि स्टेट को यहाँ पर डालूं, टोटल सेल्स को यहाँ पर डालूं, इस टेबल को एक दफा दोबारा उठाऊं, कॉपी करूँ, शीट 7 के बजाय शीट 8 में ले जाऊं, और यहाँ पर पेस्ट करते हुए मैं इनको पेस्ट एज वैल्यूज कर दूं, तो मेरे पास एक टेबल अवेलेबल हो गया है जो कि जहां पर जो स्टेट्स हैं अब उनका ग्रुप डेटा मुझे नजर आ रहा है, स्टेट्स एंड सम ऑफ टोटल वैल्यूज या टोटल सेल्स। अब अगर मैं जाऊं और यहाँ पर सिलेक्ट करूं इसको और इंसर्ट करूं, और ट्री मैप को इंसर्ट करने की कोशिश करूं, तो आई वुड गेट अ वेरी डिफरेंट ट्री मैप, ठीक है, जो कि जरा ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये ग्रैंड टोटल इस वजह से आ रहा है बिकॉज बॉटम पे जो ग्रैंड टोटल था इसका वो भी ऐड हो गया है इसके अंदर, सो आई विल रिमूव दिस कॉलम, सो दिस रो। तो आप देखें कि आपका डेटा कितना बेहतर नजर आ रहा है। इसमें से जाके मैं लेजेंड को भी खत्म कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, तो नाउ आई वुड हैव एक्चुअली मोर इन्फॉर्मेशन, मोर स्पेस फॉर इनपुट। सो नाउ आई कैन सी इन न्यूयॉर्क इज एक्चुअली a much it takes a much larger chunk along with California, और then आपके छोटे जो स्टेट्स हैं वहां पे जो सेल्स है वो इस राइट हैंड कॉर्नर के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट हुई है। सो दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा। अब यहीं पर जो है अगर मैं अगेन दोबारा जो है डोनट चार्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश करूं तो आपको जो है ना बेहतर रिजल्ट नजर आएंगे, बिकॉज मैंने जो डेटा का स्प्रेड था या उसमें जो ग्रैनुलैरिटी थी उसको रिड्यूस कर दिया बाय ग्रुपिंग द डेटा। So if I were to go over here, insert this, donut chart once again, तो अब आप देखिए कि ये कुछ कदरे बेहतर नजर आ रहा है। It's actually a little better, ठीक है, not optimum but a little better। लेजेंड के बगैर प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो है कोई फायदा नहीं होता आपको जो है ना डोनट चार्ट का। सो लेजेंड जो है ना डालना जरूरी है, और साथ में ही मैं डेटा टेबल्स भी ऐड कर देता हूँ। अगेन ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, नॉट द मोस्ट ऑप्टिमम ऑफ डेटा टाइप to use this because यहाँ पे generally percentages would have been better, but this is something, it looks a lot better। अब यहाँ पर एटलीस्ट आपको कुछ तो विजिबल है, पिछली दफा डोनट चार्ट में तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था, कुछ विजिबल नहीं था। So this is how you actually start working or interacting with visualization। So एक नंबर ऑफ विजुअलाइजेशन जो है अवेलेबल हैं, आप मैप्स भी कॉल कर सकते हैं, आप वाटरफॉल विजुअलाइजेशन अगर आपने बनानी हो आप वो भी बना सकते हैं। वाटरफॉल किस लिए यूटिलाइजेबल होती है, अगर आपने इंक्रीमेंटल चेंजेस और इंक्रीमेंटल डिक्लाइंस जो हैं या इंक्रीमेंटल इंक्रीजेस या इंक्रीमेंटल डिक्लाइंस जो हैं उनको मैप करना हो ओवर अ टाइम, जो है ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, तो वाटरफॉल जनरली उसके लिए बहुत ज्यादा यूटिलाइजेबल होता है या यूजफुल होता है। फिर देयर स्कैटर प्लॉट्स। बेसिकली स्कैटर प्लॉट आपको क्या बताता है, इट एक्चुअली सॉर्ट ऑफ टेल्स यू द कोरिलेशन बिटवीन स्टफ। सो इसकी मैं एग्जांपल एक क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू find some sort of a correlation between my total sales and total orders, so I can then look at that through a scatter plot। So if I were to select all of this, go into insert, go and select a scatter plot. What does linear mean? What it means is that for every next order there is some sort of an increase in dollar value, and that an increase in total sale value, and that sort of makes sense, right? बात है, जब आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो आपकी सेल्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। जब आपकी टोटल सेल्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑर्डर्स ही बढ़ रहे हैं, जब ऑर्डर्स आएंगे तो सेल्स बढ़ेगी ना, जब सेल्स होगी तो ऑर्डर्स बढ़ेंगे। सो दैट्स व्हाई यू सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन दिस, ठीक है। सो स्कैटर प्लॉट्स जो हैं वो आपको बेसिकली विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं इन रिलेशनशिप बिटवीन two mathematical variables, two different mathematical variables, and this is what you can see over here। What you can see is for order type for let me see, Hanji, so for total sales 4,807.9, the order count was 61, or the other way around। So for 61 की एक ऑर्डर काउंट पे यू हैड अ सेल पॉइंट ऑफ 4,807.9। अब ये रिलेशनशिप डिटरमिन करना क्यों जरूरी होता है, बिकॉज दिस लीनियर रिलेशनशिप कैन हेल्प यू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की तरफ लेट्स से कि अगर आपने मूव करना है तो पास्ट का कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है ना आपके पास उसकी कोई वैल्यूज अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो वैल्यूज अवेलेबल होंगी
तो विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ सर्टेनिटी आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकेंगे। और इसी वजह से लीनियर रिग्रेशन जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है इन ऑर्डर टू look into the future. Now, again, not all relationships are linear in nature. ये एक सबसे basic type of relationship है. There can be relationships that are exponential in nature. Exponential relationships की एक बहुत अच्छी example जो है ना, that is your relationship of age and salary. So, जिस तरह आपकी age और experience increase करता है, it is not necessary कि आपकी salary भी increase करे. But after a certain number of years, once you have actually spent those number of years in the industry, आपकी जो salary है वो exponentially increase करना शुरू कर देगी. So if I were to chart this, and again this does not hold true for every human being, but it holds true statistically. देखा गया over time कि इस तरह होता है. So if I were to say कि मेरी जो सैलरी है वो इस एक्सेस के ऊपर है और मेरा नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो इस एक्सेस के ऊपर है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये लीनियरली जो है ना इंक्रीज करें, वो हो सकता है यूं इंक्रीज करें. सो दिस इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है ना, एंड दिस इज एक्चुअली एन एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप. ठीक है, इस रिलेशनशिप को कवर करने के लिए यू कैन नॉट यूज द सिंपल लीनियर इक्वेशन. उसके लिए फिर यू वुड नीड टू मेक एडजस्टमेंट्स टू योर फॉर्मूलाज और योर लीनियर इक्वेशन फॉर्मूला. ठीक है, सो ये अगेन ये स्टैट्स के पोर्शन के अंदर आप ब्रीफली जो है बीए के कोर्स में इसको टच बेस करते हैं, बट जस्ट टू गिव यू गाइस लाइक एन ओवरव्यू ऑफ कि यू नो लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप में क्या फर्क है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्चुअली शेयर व्हेन इट कम्स टू एक्सेल. ये इसका एक बेसिक ओवरव्यू था ऑफ द कैपेबिलिटीज दैट यू कैन एक्चुअली do in Excel. Let's quickly move on to our SQL part. So in SQL जो है मैं what I'm going to go through is what are relational databases, what are dimension and lookup tables. So in fact, sorry, I see actually a small mistake over here. So what are dimension tables and fact tables? Sorry about that. I'll just quickly make this adjustment. So what are dimension and fact tables and how do tables communicate with each other? Basic SQL की कुछ जो है basically commands जो है वो मैं खुद भी करूँगा, आप लोगों से भी करवाऊंगा. Select, where, aggregate एक आधा हम लगा के देख लेंगे, sum का, group by कैसे होता है, order by कैसे होता है, joins जो है फिर वो मैं खाली मैं करूँगा because you know जो online जो इन्वायरमेंट है एसक्यूएल की जो कि मैं यूज करवाऊंगा आप लोगों से, उसके ऊपर जाना आई डोंट थिंक मैंने कोई जॉइंस लगा के देखे नहीं है और यू नो मुझे लगता है कि उस पर प्रॉब्लम होगा. सो जॉइन किस तरह लगता है वो आई जस्ट शो यू दैट एंड देन वी कैन एक्चुअली गो थ्रू सम बेसिक क्वेश्चन आंसर्स. अगेन व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स हम इन एसक्यूएल को काफी थॉरोली कवर करते हैं. We start from the select commands and go all the way till OLAP या you know online analytical processing के जो फंक्शन होते हैं वहां तक हम उनको कवर करते हैं. बीच में के स्टेटमेंट, सीटीईज, सब क्यूरीज जो है ना इस तरह के टॉपिक्स हम काफी थॉरोली विद एक्सरसाइजेस यू नो हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस हम कवर करते हैं. सो लेट्स यू नो चेक अराउंड. हम लेट्स स्टार्ट विद द एसक्यूएल पार्ट. So just a brief introduction to you know what SQL is and what are relational databases. So a relational, in theory, a relational database is just a set of tables. As I showed you in SSMS, there is a database and then there are tables within that database. So a database is nothing but a combination of different tables. And what are tables? You know, these are actually just data sets जिनके अंदर rows और columns में data पड़ा होता है. Or a relational database is a set of tables that contain information relating to other tables in the database. So ये जो database है इसके अंदर जो data tables पड़े हुए हैं इनके दरमियान में कोई ना कोई relationship चल रहा होता है जो कि basically you know keys की basis पे होता है. ठीक है, और ये कीज जो हैं ये मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर पड़ी हुई होती हैं जो कि हेल्प करती हैं कि दो टेबल्स जो हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें. अब व्हाई डू वी नीड टू मूव टू रिलेशनल डेटाबेसेस? बिकॉज as companies grow,
रिकॉर्ड्स जो हैं वो बेसिकली या जो स्टोरेबल इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है। इन दैट केस अ नॉन स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड data management system like Excel is not is not feasible. So you need to move to some sort of a structured relational database जहां पर बेसिकली आपका सारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा हो पीरियोडिकली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर पीरियड यू डिसाइड किसने स्टोर होना है एंड देन उधर से वो डेटा कॉलेबल भी। सो दैट इज व्हाई रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और इसी वजह से ये इस्तेमाल भी की जाती हैं। सो डेटा इन सेपरेट टेबल्स हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज फॉर स्पेस एज वेल। अगेन जब आपकी मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा होगा तो अगर वो सारे को आप एक बड़े से चंक ऑफ जो मेरा मतलब है ना टेबल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो दैट इज नॉट अ वेरी ऑप्टिमम वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। What you can do is you can actually develop a relational database जिसके अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है पड़ी हुई है एंड यू ओनली कॉल दैट इंफॉर्मेशन जो कि आपको रिक्वायर्ड है इन परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ एन एनालिटिकल प्रोसेस। ठीक है। सो एक एग्जांपल ये है कि लेट्स से कि कस्टमर और ऑर्डर्स के दो टेबल है। अब कस्टमर्स के टेबल के अंदर जो है बेसिकली कस्टमर की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है लाइक इट्स हिज नेम हिज और हर नेम, उसकी कंपनी, उसकी फोन नंबर, उसका ईमेल और कब वो हमारा कस्टमर बना अलॉन्ग विद द कस्टमर आईडी। और ऑर्डर्स में जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो ऑर्डर आईडी, डेट, काउंट ऑफ आइटम्स और टोटल अमाउंट जो कि सेल हुई। सो कस्टमर आईडी जो है वो एक ऐसा कॉमन कॉलम है बिटवीन बोथ ऑफ दीज टेबल्स जो कि आप यूटिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट मेक दीज टेबल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब कस्टमर आईडी जो है वो दोनों टेबल्स में पड़ा लेकिन एक टेबल में इसको प्राइमरी की कहा जाएगा, दूसरे टेबल में इसको जिसे कहते हैं ना सेकेंडरी की कहा जाएगा। या सेकेंडरी की कहा जाएगा या प्राइमरी की कहा जाएगा या जिसे कहते हैं फॉरेन की, मेरे जहन से एकदम नाम निकल गया। प्राइमरी की कहा जाएगा और फॉरेन की कहा जाएगा बिकॉज कस्टमर्स का टेबल जो है वो एक डायमेंशन टेबल है। ये बात मैंने पहले भी जिक्र किया है कुछ देर पहले एक्सेल के अंदर जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था। डायमेंशन टेबल जो है ना वो एक ऐसा टेबल है जो कि कस्टमर की यूनिक कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है वो सेव करता है। वेयर एज जो ऑर्डर्स है उसमें जो कस्टमर आईडी पड़ी हुई है ये फॉरेन की करेगी बिकॉज यहां पर ये कस्टमर आईडी जो है वो बार बार रिपीट हो रही होगी। कस्टमर्स के टेबल के अंदर कस्टमर आईडी सिर्फ एक दफा है, ऑर्डर्स के टेबल के अंदर कस्टमर आईडी मल्टीपल टाइम्स आएगी और इसी वजह से यहाँ पर ये फॉरेन की लाएगी और कस्टमर्स के टेबल में कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की लाएगी। इसका मैं एक एग्जांपल जो है आपको जस्ट सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है काफी लोगों की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर अच्छी है लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दोज पीपल जिनकी यू नो हु आर एक्चुअली न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट लेट मी जस्ट शो यू गाइस एन एग्जांपल। So I will refer back to my database of AdventureWorks और मैं यहाँ पर जो है बेसिकली टेबल्स को जो है ना एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। Now I'll show you a quick example of two tables. So let me run these. अच्छा, अब इसमें से एक टेबल जो है जो कि आपको टॉप पर नजर आ रहा है दिस इज द सेल्स ऑर्डर डिटेल टेबल, ये उसका रिजल्ट है। और जो बॉटम पे नजर आ रहा है वो प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल जो कि बॉटम पे है वो डायमेंशन टेबल इस वजह से बिकॉज इसमें हर रो के अंदर एक यूनिक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। प्रोडक्ट आईडी 1 जो है वो एडजस्टेबल रेस है, प्रोडक्ट आईडी 2 जो है वो बेरिंग बॉल है, प्रोडक्ट आईडी 3 जो है वो बीबी बॉल बेरिंग है। यहां पर हर रो के अंदर एवरी रो कंटेन्स यूनिक इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू वन प्रोडक्ट। लेकिन सेल्स ऑर्डर डिटेल टेबल के अंदर अगर मैं प्रोडक्ट आईडी को जाकर देखूं
तो मुझे ये प्रोडक्ट आईडी रिपीट होती हुई नजर आएगी बार बार। आप लोगों को शायद यहाँ पे रिपीट होती हुई नजर ना आ रही हो, लेकिन आई कैन एक्चुअली शो यू कि ये वाकई रिपीट हो रही है। डू नॉट वरी अबाउट द सिंटैक्स, जस्ट फॉलो द थ्योरी दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर इट। सो इसको अगर मैं ऑर्डर बाय कर दूं और फिर मैं रन करूं इन दोनों टेबल्स को, अब आप ये देखें इसमें प्रोडक्ट आईडी बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्यों रिपीट हो रहा है बार बार? ये इस वजह से रिपीट हो रहा है कि सेल्स ऑर्डर डिटेल का टेबल एक ट्रांजैक्शनल नेचर का टेबल, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही है, आपकी जो सेल्स हो रही हैं वो रिकॉर्ड हो रही है। तो एक दिन में एक सेल तो नहीं होगी ना, यू वुड एक्चुअली बी मेकिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स इन अ सिंगल डे, और हर सेल के अंदर, हर सेल्स ऑर्डर आईडी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो है ना सेल हो रहे होंगे। ये चीज अगर मैंने चेक करनी हो कि क्या सेल्स ऑर्डर आईडी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है ना वो प्रोडक्ट आईडी सेल हो रही हैं या नहीं हो रही, तो मैं यहां से एक छोटा सा ट्वीक करता हूं एंड आई वुड रीरन द क्यूरी टू मेक यू सी। अब आप ये देखें सेल्स ऑर्डर आईडी 43659 जो कि मल्टीपल टाइम्स यहां पर रिपीट हो रही है, उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी 776, 777, 778, 771, 772, 773 सारे जो है यहाँ पर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस सेल्स ऑर्डर आईडी के अंदर ये सारे प्रोडक्ट सेल हुए, इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये सारे प्रोडक्ट सेल हुए। सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ डायमेंशन टेबल फ्रॉम अ फैक्ट टेबल, ठीक है। और इसी चीज को यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है थ्रू दिस कि अब इन्हीं इन्हीं यही जो डायमेंशन टेबल्स हैं, फैक्ट टेबल्स हैं, इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना होता है। हाउ डू टेबल्स कम्युनिकेट? दे एक्चुअली कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन कीज, जो कि मैंने आपको एग्जांपल अभी यहां पर दिखाई। यहां पर जो प्रोडक्ट आईडी है वो डायमेंशन टेबल में, यानी कि प्रोडक्ट के टेबल में, इट्स अ प्राइमरी की। It's a primary key because it only occurs once. But in the fact table, it becomes a foreign key because it's repeating again and again. अब अगर मैंने बेसिकली नेम की बेसिस के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालनी हो, यानी कि प्रोडक्ट नाम मैंने साथ में दिखाना है और प्रोडक्ट की लेट्स से टोटल लाइन टोटल कैलकुलेट करना है, तो मुझे प्रोडक्ट का नाम जो है वो प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट टेबल से लेकर आना पड़ेगा और उसको किसी तरह अटैच करना पड़ेगा सेल्स ऑर्डर डिटेल के टेबल के साथ, और वहां से मुझे वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये जो कैलकुलेशन करने के लिए जो कम्युनिकेशन है, ये प्राइमरी और फॉरेन की बेसिस के ऊपर हो रही होती है। And this is the main concept of distributed, distributed relational database. This is the relationship between which we are talking about when we talk about relational databases. ठीक है। अब इसकी एक अगर हम एग्जांपल यहाँ पर देखें, एक सिंपलर एग्जांपल, तो यहाँ पर एक ऊपर टेबल है जिसमें आपको स्टूडेंट नंबर नजर आ रहा है और स्टूडेंट नेम भी नजर आ रहा है, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर स्टूडेंट्स की कोर्सेज की इंफॉर्मेशन पड़ी है और एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज क्योंकि एक वक्त में ले सकता है। सो दैट्स व्हाई यू सी अ रिपीटिंग स्टूडेंट नंबर आईडी, दैट्स व्हाई दिस इज अ फॉरेन की ओवर है। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ टेबल्स वर्क, दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे कम्युनिकेट ऑन द बेसिस ऑफ दीज कीज, ठीक है। मैं जो भी कनेक्शन बनाऊंगा, जैसा भी बनाऊंगा, अभी मैं उसके बारे में बात ही नहीं करता कि वो ज्वाइन जो लगेगा तो किसके साथ होगा, जो भी कनेक्शन बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट नंबर जो कि मेरा डायमेंशन टेबल में पड़ा है और स्टूडेंट नंबर जो कि मेरा फैक्ट टेबल में पड़ा है, उनके दरमियान, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद रिलेशनल डेटाबेसेस। अच्छा, अब आई एम क्विकली गोइंग टू गो ओवर टू सम बेसिक सिंटैक्सेस जो कि बेसिकली हमने यूटिलाइज करनी है व्हेन ट्राइंग टू क्यूरी अ डेटाबेस। अच्छा, अब ये अगर क्लास मेरे साथ करना चाहती है, which I would strongly recommend. Right. So this is actually ये एक ऐसी environment है, एक वैसी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप बेसिकली ऑनलाइन जो है ना अपनी कोई क्यूरीज वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस जगह पे आपने एसक्यूएल की क्यूरी लिखनी है, दैट्स राइट एट द बॉटम ऑफ द पेज। यार ये ऐड जो है ना ये बेसिकली कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश, यहाँ पर जो है बेसिकली हम अपनी क्यूरीज लिखेंगे, लेकिन इस छोटे से मूवीज के डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर
आपकी स्कीमा ही रिप्रेजेंट हुई होती है। ये इस डेटाबेस की एक छोटी सी स्कीम है। लेट्स से कि मैं आपको एक और ईआरडी दिखाता हूँ। लेट मी एक्चुअली शो यू some small ERD diagrams. Just let me show you. ये एक छोटी सी ईआरडी डायग्राम है ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पास, और ये एक सेक्शन की खाली ईआरडी। सो ये एक सेक्शन जो है हमारे प्रोडक्ट का, उसकी ईआरडी जो है ना वो ये। एडिशनली आप जब जो है ना बेसिकली क्यूरिंग टूल्स यूज करेंगे तो आप ईआरडीज को जनरेट भी कर सकते हैं। उसका आई थिंक तरीकाकार एसएसएमएस के अंदर तो ये होता है कि यू गो ओवर हेयर एंड आई थिंक आपको जाना पड़ता है, एक मिनट है ना, मुझे जरा याद करने दीजिएगा। सो ये न्यू डेटाबेस की जो डायग्राम है, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये जो है मुझे कहेगा कि शायद तुम जो ईआरडी यू नो बनाना चाह रहे हो या देखना चाह रहे हो वो किन टेबल्स के दरमियान है। मैं इसको कहूंगा यार सारों को कर लो सिलेक्ट, एंड इफ आई वर टू गो अहेड एंड ऐड दिस, तो आप ये देखें कि ये पीछे जो है ना एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करना शुरू कर देगा जो कि आपको ईआरडी बनाकर दिखाएगा। सो लेट इट फिनिश इटसेल्फ। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है बट इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ एज अ डेटा एनालिस्ट, और लेट्स से कि अगर आप कोई एसक्यूएल की लेयर के ऊपर बैठने वाले हैं, तो इट वुड बी वेरी गुड इफ यू कुड गो थ्रू ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, स्कीमा कैसे डिजाइंड है, कोई सब स्कीमास तो नहीं है आपके डेटाबेस के अंदर। और बिकॉज वो फिर जब आप क्यूरीज करना शुरू करते हैं तो उस वक्त जो है ना आपको फैसिलिटेट करता है। सो अब आप ये देखिएगा कि ये इसने ईआरडी जो है वो कंप्लीट कर दिया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड जूम इट आउट। तो आप ये देखें कि आपका जो सारे का सारा जो डेटाबेस है एडवेंचर वर्क्स का, वो कुछ यूं डिजाइन हुआ है। इसके अंदर ये मुख्तलिफ टेबल्स हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनके दरमियान में रिलेशनशिप आपको नजर आ रही है, एक लाइन नजर आ रही है रिलेशनशिप। तो प्राइमरीली ये जो विजुअलाइजेशन में जो चाबी है वो ये बता रही है कि जो आपकी प्राइमरी की है वो इस रिलेशनशिप में इस जगह पर पड़ी हुई है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी के अंदर। इसी तरह प्रोडक्ट सब कैटेगरी और प्रोडक्ट कैटेगरी के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसके अंदर जो प्राइमरी की है वो पड़ी हुई है प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। तो अगर आप इसको विजुलाइज करें तो आपको समझ आएगी कि प्रोडक्ट कैटेगरी के नीचे प्रोडक्ट सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी के नीचे प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के नीचे आपका सेल्स का डेटा है। जिस तरह हम जाएंगे तो यहाँ पर मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूँ कि सेल्स का डेटा कहाँ पर पड़ा हुआ है, बल्कि इनफैक्ट मैं उसको फाइंड भी कर सकता हूँ, सेल्स ऑर्डर डिटेल लिख के, अगर मुझे वो अलाउ करे। यहाँ से क्या मुझे फाइंड करने देगा? शायद शायद नहीं, यहाँ से नहीं करने दे रहा, बोर्ड एफ से होगा। अच्छा खैर, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल, नहीं इसको भी फाइंड नहीं कर रहा। अच्छा चलें इसको फिर मैनुअली देखते हैं कि सेल्स ऑर्डर डिटेल का टेबल कहाँ पर पड़ा हुआ है। zoom out करते हैं, let's try to find that. It's a huge database. अगेन इससे भी बड़ी बड़ी डेटाबेसेस जो हैं वो आपको बेसिकली बाद में शायद मैनेज करने पड़ेंगे। हाँ ये रहा, देखिए, सो इट इज ओवर हियर, इट्स दिस टेबल। ठीक है, सो ये टेबल जो है इसको अगर मैं यहाँ पर ऊपर ले आऊँ तो लेट्स सी कि इसका क्या रिलेशनशिप है विद मैं जिस फ्लो से आ रहा था। ये तो क्या इनका आपस में कोई रिलेशनशिप बनता है? अच्छा, डायरेक्ट रिलेशनशिप वैसे कोई नहीं है, नजर नहीं आ रहा। ये आ रहा है जो फ्लो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट के टेबल से, या सो द प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट का जो टेबल है, इनफैक्ट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, आई थिंक सो देयर इज। डायरेक्ट रिलेशनशिप वैसे इनके दरमियान में कोई नहीं है, लेकिन ये दोनों कीज जरूर आपस में शेयर करते हैं।
ठीक है। सो ये फ्लो वैसे जनरली चल इसी तरह रहा है कि ये जो प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट है ये किसी और टेबल के अंदर फीड हो रहा है और वहां से आप सेल्स ऑर्डर डिटेल टेबल के अंदर आ रहे हैं, बट हम सेल्स ऑर्डर डिटेल टेबल और प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट टेबल को डायरेक्टली भी जो है ना आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं, ऑल्दो कि यहाँ पर वो रिलेशनशिप डायरेक्टली नहीं बना हुआ, ठीक है, बिकॉज इन दोनों के दरमियान में कॉमन शेड कीज। सो अगेन आप इस तरह जो है बेसिकली मैप कर सकते हैं कि अच्छा यार इफ आई वर टू राइट अ क्यूरी जो कि मल्टीपल टेबल्स को कॉल करी होगी तो मैंने कैसे प्लान करना है, कहां पर मेरी प्राइमरी की है और कहां पर मेरा डायमेंशन टेबल है और कहां पर मेरा फैक्ट की है और कहां पर मेरा फैक्ट टेबल पड़ा हुआ है, या मेरी फॉरेन की है और कहां पर मेरा फैक्ट टेबल पड़ा हुआ है। सो अब थोड़ा सा जो है ना सिंटेक्स को देखते हैं एसक्यूएल की। सो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक कमांड है वो सिलेक्ट और फ्रॉम की कमांड है। सो जो बेसिक कमांड है वो इसी तरह लिखी जाती है कि यू राइट सिलेक्ट, जो कि सिस्टम कमांड है एसक्यूएल की, उसके बाद स्टैटिक फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल नेम, और इसको अगर मैं यहाँ पर रन करने की कोशिश करूँ, ये मेरे पास मुख्तलिफ टेबल्स हैं जिनमें एक मूवी का टेबल है उसके ऊपर। सो मैं यहाँ नीचे बॉटम पर जाता हूँ और आई वुड रिकमेंड दोज पीपल जो कि मुझे फॉलो कर रहे हैं या यू नो दे आर एक्चुअली इन द क्लास टू फॉलो मी। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज टेबल, और इसको मैं अगर वैलिडेट करूँ और सबमिट करूँ, अच्छा इसने कोई आउटपुट नहीं दी, क्या मैंने सही लिखा है? मूवी का नाम क्या मूवीज का टेबल है या मूवी? अच्छा ओके, इट्स नॉट मूवीज इट्स मूवी। सो आई वुड चेंज द टेबल का नाम और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप ये देखेंगे ये टेबल मुझे यहाँ पर अवेलेबल हो गया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दिस कमांड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क एसक्यूएल इज कि सिलेक्ट एवरीथिंग, द स्टार रिप्रेजेंट्स ऑल, रिप्रेजेंट्स के आप सारे कॉलम्स को कॉल कर रहे हैं फ्रॉम द मूवी टेबल। सो बड़ी सिंपल सी क्यूरी है, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द मूवी टेबल, और एग्जैक्टली इसने ये किया कि मुझे जो है पूरे का पूरा यहाँ पर टेबल कॉल करके दे दिया है कि एवरीथिंग फ्रॉम द मूवी टेबल इज नाउ अवेलेबल। बट व्हाट इफ के मैं खाली चाहूं कि मुझे मूवी आईडी, मूवी ईयर और मूवी टाइम नजर आए, तो मैं स्टार को रिप्रेजेंट कर दूंगा विद मूवी आईडी, मूवी टाइटल, मूवी ईयर और मूवी लैंग्वेज। एंड इफ आई ट्राई टू रन दिस एंड लेट्स सी कि अगर ये चलता है नहीं चलता, तो अब आप ये देखें कि मेरी सिलेक्शन जो है वो रिड्यूस हो गई बिकॉज मैंने अब पर्टिकुलर कॉलम्स के नाम यहाँ पे दिए रादर देन स्टार। सो यहाँ पर जो स्लाइड्स के अंदर जो मैंने सिंटेक्स बताया एग्जैक्टली यही बताया कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल, और सिलेक्ट कॉलम नेम 1 जिस तरह कि मैंने आपको करके दिखाया, कॉलम नेम 2, so on and so forth, जितने भी आपने कॉलम कॉल करने फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल। सो a star after the select command signifies that all columns in the table are being called, and star can be replaced by column names in order to limit your selection. The order in which the column names are called does not matter. What does that mean? It means is कि अगर मैं यहां पर जाऊं और मूवी टाइटल को यहां से कट करूं और यहां पर पेस्ट करके ये कॉमा हटा दूं और वैलिडेट करूं और सम करूं, तो अब आप ये देखें कि जिस ऑर्डर में मैंने कॉल किया उसने आउटपुट उस ऑर्डर के अंदर दे दी, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जिस ऑर्डर में ये टेबल जो है मूवी का, जो कि विच इज दिस टेबल, ऑर्गेनाइज हुआ है उसी ऑर्डर में मैं इनको कॉल करूं। आई जस्ट नीड टू पास द नेम ऑफ द कॉलम इन एनी प्लेस वेयर आई कैन कॉल इट, तो वो उसी हिसाब से मुझे आउटपुट दे देगा। तो इसलिए द ऑर्डर डज नॉट मैटर। सो आपकी क्यूरी इस वजह से फेल नहीं होगी बिकॉज आपने जो है ना ऑर्डर इसका चेंज किया। सो इफ यू वांट टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ अ कंडीशन, यानी कि आपने अगर कोई कंडीशन पास करनी, ऐसे ही है ना, तो यहां पर जो मैंने सिंटेक्स लिखा है वेयर का, वो यही बात आपको बता रहा है। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल, जहां पर एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर एक कंडीशन मीट हो रही है, इसको मैं क्यूरी में कैसे ट्रांसलेट करूंगा? सो लेट्स से कि मैं यहां पर इफ आई गो ओवर हियर एंड आई से कि अच्छा आई वांट टू कॉल ऑल द मूवीज फ्रॉम दिस टेबल, सारी मूवीज सारे कॉलम्स फ्रॉम दिस टेबल जहां पर मूवी ईयर वाज
लेट्स से 1984 कर लेते हैं, ठीक है। सो आई से इस सारे को हटा देता हूँ फॉर द टाइमिंग। सो आई से सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल मूवी वेयर द मूवी, कॉलम का नाम क्या था, मूवी अंडरस्कोर ईयर, मूवी अंडरस्कोर ईयर equals to 1978. Sorry, 1978. Let's see if it runs. So 1978 में ये पर्टिकुलर मूवी जो है आई थी। So अब क्या हो रहा है, a condition is being passed where I am specifying to SQL कि तुमने पूरे का पूरा टेबल के सारे कॉलम लेकर आने हैं, बट उसके लिए तुमने इस चीज का ध्यान रखना है कि मूवी का जो साल है वो 1978 का होना चाहिए। आई कैन चेंज दिस to let's say 1984. So let me go over here and change this to 1984. Like this, validate, submit. You see, नीचे जो रिजल्ट है वो जो है चेंज हो गया। अच्छा, मैं ये इसको एक ऑनलाइन एडिटर में क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज मैं सब लोगों को SSMS जो है ना इंस्टॉल नहीं करवा सकता था। दैट्स वाई जो SSMS है या जो इस तरह के ऑन डेस्कटॉप टूल्स हैं उनमें बहुत सारे और फीचर्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल डीबगिंग अगर आपने करनी हो एरर्स की तो वो आप इस ऑनलाइन एडिटर के अंदर शायद ना कर सकें, लेकिन इन SSMS या वर्कबेंच या इस तरह के जो और भी टूल्स हैं उनके अंदर जब आप क्यूरी करते हैं तो आपको डीबगिंग के बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और जो है कोई गलती कर, जैसे कि मैंने ये कॉलम का नाम जो है ना गलत कर दिया है, सॉरी ऑर्डर बाय में जो मैंने कॉलम कॉल किया उसको मैंने गलत कर दिया, या चले फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने ऑर्डर डिटेल का जो फ्रॉम के अंदर जो मैंने ऑर्डर डिटेल कॉल किया, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसने मुझे यहाँ पर रेड लाइन देना शुरू कर दिया, बिकॉज वो इंटेलिजेंटली ये देख रहा है कि यार मेरे पास तो सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटाई का कोई टेबल नहीं पड़ा हुआ, डिटेल पड़ा हुआ है लेकिन डिटाई तो कोई नहीं पड़ा हुआ। अब अगर लेट्स से कि मैं फिर भी जाता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो मुझे कहता है कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटाई, वो मुझे ये बता रहा है कि यार ये ऑब्जेक्ट कोई इस तरह के नाम कोई ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ। अब ये जो एरर हैंडलिंग है ना ये बहुत अच्छी होती है इन SSMS या वर्कबेंच या जो भी आपके डेस्कटॉप प्रोन जिसे कहते हैं ना आपके, या डेस्कटॉप बेस्ड जो आपके टूल्स हैं। ऑनलाइन एडिटर में नहीं, बट मजबूरी ये थी कि आई कुड नॉट एक्चुअली हैव एवरीबॉडी इंस्टॉल SSMS और एडवेंचरवर्क्स, लेकिन अगर आप लोग कभी भी यूज करें इसको तो इट वुड बी बेटर कि आप एक एक्चुअल प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के अंदर इसको जाना करें जिस तरह SSMS है। सो अगर मैं इसको ऑर्डर जेनेसिस ऑर्डर डिटेल करके दोबारा करूंगा तो इट वुड एक्चुअली एग्जिस्ट करेक्ट। मूविंग हेड, ये वेयर की क्लॉज की यूजेज है। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल जहां पर मैं एग्रीगेशन कर रहा हूं किसी से। सो इफ आई वर टू गो ओवर हियर इन माय क्यूरी एडिटर एंड यहां पर जाकर मैं कहूँ कि अच्छा यार मैं ये सम करके देखना चाहता हूँ कि ये मूवी टाइम जो है इसका टोटल सम क्या है, तो हाउ वुड आई डू दैट? I would replace this and I would say select the move time underscore time from movies. Let's say अगर मैं इसको पहले रन करता हूँ तो क्या ये पूरा टेबल आता है नहीं आता? अच्छा मैंने फिर कोई गलती किया, इसका मतलब है फ्रॉम मूवी है, आई थिंक इट्स नॉट मूवीज, या इट्स मूवीज, सॉरी आई कीप ऑन फॉरगेटिंग दिस। तो अब आप ये देखें कि मूवी टाइम का कॉलम मेरे पास अब आ गया। अब लेकिन मैंने इसको एग्रीगेट करना है सारे टाइम, सो व्हाट वुड आई डू? I would bind the movie time column in some sort of an aggregator. So let's say कि यहाँ पे मैं sum लिख दूँ। Does that work now? अब आप ये देखें कि मेरे पास 3874 मिनट्स का सम आ रहा है। Now this is what aggregation looks like. मैं इसको एवरेज भी कर सकता हूँ। I think it should be AVG. So the average time per movie was 138 minutes. So this is how aggregation works. ठीक है, so I changed the nature of the aggregate. मैं multiple aggregates भी डाल सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि sum movie time, comma average movie time.
तो मुझे 2 कॉलम्स की सूरत में ये मेरा रिजल्ट दिखा देगा। तो ये देखें सम एंड एवरेज। ओके, अब लेट्स अज्यूम कि इससे अगले स्टेप में you want to break down these numbers on the basis of some sort of a category. Let's say आपके पास सवाल ये है कि मुझे सम टाइम और एवरेज टाइम ऑफ द मूवी की लैंग्वेज की बेसिस के ऊपर चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे मूवी लैंग का एक कॉलम आ रहा है। इस कॉलम को मैं यहां पर कॉल करने की कोशिश करता हूं और फिर देखता हूं कि क्या होता है। ये नॉट ऑथराइज्ड का मुझे एरर दे रहा है। एक्चुअल में ये एरर होगा क्या अगर मैं इसी चीज को एसएसएमएस में रेप्लिकेट करूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से फॉर द सेक ऑफ ईज ये वाला हटा देता हूं, ऑर्डर बाय भी हटा देता हूं, एंड आई विल जस्ट कॉल द एंटायर टेबल। इसके अंदर जो है मैं लाइन टोटल को कॉल करता हूं। मैं कहता हूं कि लाइन टोटल का मुझे तुम सम दे दो, सम भी दे दो और साथ में एवरेज भी दे दो। ये मैं वही जो एग्जांपल है उसको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, या उसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एरर नजर आए जो कि जो एक्चुअली वहां पे हमें नजर नहीं आ रहा है, एवरेज। अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो मेरे पास अगेन 2 कॉलम आ जाएंगे। लेकिन लेट्स से कि मैं इसके अंदर कहता हूं कि मुझे ये लाइन टोटल एवरेज सम लाइन टोटल और एवरेज लाइन टोटल चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी मुझे प्रोडक्ट आईडी वाइज ब्रेकअप करके दिखाओ। अच्छा, अब अगर मैं इसका एग्जीक्यूट करूंगा तो एक्चुअली मुझे ये एरर नजर आए। तो हो ये रहा है कि हमने क्योंकि बीच में 2 एग्रीगेटर्स यूज किए हुए हैं, सम और एवरेज। तो जो प्रोडक्ट आईडी है इसको हम किसी एग्रीगेटर में तो नहीं डाल सकते ना। क्या हम प्रोडक्ट आईडी को सम कर सकते हैं, उससे हमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी? सो इफ आई वर टू पुट इन, नहीं मिलेगी बिकॉज इट्स अ डायमेंशन। प्रोडक्ट आईडी इज प्राइमरीली इट इज मैथमेटिकल इन नेचर बट इट इज अ डायमेंशन। तो अगर मैं इसको एग्रीगेट नहीं कर सकता जो कि एग्जैक्टली जिसकी वजह से एरर कॉज हो रहा है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर किसी ना किसी ना ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। और ग्रुप बाय का सिंटेक्स जो है वो यहां पर एग्जैक्टली यही है कि you select something from a particular column and then you perform some sort of an aggregation if you have to, and from the table you need to then pass some sort of a group by command जिसके अंदर आप इस कॉलम को जिसको आप एग्रीगेट नहीं कर रहे उसको आपको पास करना पड़ता है, वरना आप हमेशा you would actually face some sort of an error. Or if I were to go back over here and say group by product ID and then run this entire thing, तो कमांड जो है वो सक्सेसफुली हो गई। या सो यू लुक एट दिस। सो अब देखिए मुझे वो प्रोडक्ट आईडी की बेसिस के ऊपर मुझे जो है वो सम करके दे रहा है, लाइन टोटल भी और एवरेज वैल्यू पर प्रोडक्ट आईडी भी जो है वो मुझे निकाल के दे रहा है। जो दूसरा कॉलम है जिसके ऊपर नो कॉलम नेम आ रहा है वो बेसिकली मेरी एवरेज की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमने जब एग्रीगेटर लगाए हैं इन कॉलम्स के ऊपर तो आपने ये देखा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो हमें एलियसिंग करनी पड़ेगी। वी वुड नीड टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ एन एलियस। और मैं यहाँ पर यही करूंगा कि मैं सम लाइन टोटल को कह दूंगा एज सम लाइन टोटल और एवरेज लाइन टोटल को कह दूंगा एज एवीजी लाइन। एंड इफ आई वर टू रन दिस नाउ तो अब आप ये देखें कि मेरे पास एलियस्ट कॉलम नेम्स यहां पर। अब यही काम अगर मैं ऑनलाइन जाकर वो करेक्शन करने की कोशिश करूं, बिकॉज अब आप लोगों को फ्लो समझ आ गया होगा कि मूवी लैंग्वेज क्यों मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा, बिकॉज मैंने यहाँ पर आगे ग्रुप बाय पास नहीं किया।
अभी भी इसने एरर दिया है, क्या वजह है इसकी? एक सेकंड, ग्रुप बाय मूवी लैंग, ये अगेन ऑनलाइन एडिटर के यही इश्यूज हैं, इसी वजह से मैं जनरली अवॉइड करता हूँ और मैं SSMS इंस्टॉल करवाता हूँ ड्यूरिंग जब मैं कोर्स करवा रहा हूँ। अब ये किस वजह से आ रहा है मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसको असूलिंग ग्रुप बाय करना चाहिए। Let me do something. Let me actually convert all of this into a single line of code, which is not advisable, but या देखिए अब ये अगेन इस इज सिली थिंग जो कि ऑनलाइन एडिटर में आपको करनी पड़ती है जस्ट टू गेट एन आंसर। सो अब आप ये देखें क्या मुझे नजर आ रहा है कि जो सम ऑफ मूवी टाइम पर मूवी लैंग्वेज जो है वो मुझे अब नजर आ रही है। सो दी जापानीज मूवीज का जो सम टोटल मेरे पास पड़ा हुआ है 466 है, इंग्लिश मूवीज का 348 है, 3408 है सॉरी, और जो एवरेज मूवी टाइम है वो जापानीज मूवीज का 155 है, वेरस इंग्लिश मूवीज का 136 है। सो ऑन एन एवरेज जापानीज मूवीज इज अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स लॉन्गर देन an English movie. Again, Japanese movies बहुत कम थी, शायद this is not a very good representation of the Japanese movies. But again, इस data set की confines में रहते हुए आप ये deduce कर सकते हैं, या you can actually say with a certain degree of confidence कि Japanese movies on an average are approximately 20 minutes longer than English movies. Okay, so let's start once again. So I hope my screen is visible. So हमने जो है group by की command जो है वो conclude की थी and then we went on a break. Moving ahead is actually the order by को जरा देख लेते हैं. So order by, what does order by allow you to do? It actually allows you to order your data, right? And इसको करने के दो syntaxes हैं. Again ये from की command के बाद order by आता है usually. But you could actually run an order by right after a from command or also after by group by or having की condition खैर मैंने यहाँ पर नहीं करवाई, लेकिन जो है basically group by के बाद you can actually also use an order by. So for example, if I were to go over here and try to actually order by something, so मैं जो हूँ मूवी टेबल के अंदर से मूवी ईयर को ऑर्डर बाय करना चाहता हूँ. So I want to order the entire table on the basis of movie year. So how would I do that? इसका जरा syntax देखेंगे. I will actually call the select star from movie. ठीक है, पहले मैं इस पूरे टेबल को कॉल कर लेता हूँ which is now here, and then जो मूवी ईयर है इसकी बेसिस पे मैंने ऑर्डर बाय लगाना है. So if you look at this, तो यहाँ पर जो है आपको एक ऑर्डर अब नजर आ रहा है, पहले ये ऑर्डर नजर नहीं आ रहा. एंड दिस एक्चुअली टेल्स यू कि इन SQL आप जब ऑर्डर बाय की कमांड जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो द डिफॉल्ट ऑर्डर बाय इज इन द असेंडिंग ऑर्डर. बट इफ यू वर टू पुट इन, इफ यू वांटेड इट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा DESC. एंड लेट्स सी इफ दैट रन्स. So now you can see that now you have a movie table available in the descending order. So descending का मतलब क्या हुआ कि it's actually going from the most recent towards the least recent. Ascending के केस में क्या हुआ? It's actually going from the least recent to the most recent. So the order actually increases or decreases towards the as you go towards the bottom of the table. So ये जो है ना ज़हन में रखने वाली चीज़. Furthermore, let's say if I were to say if I have to use this with some sort of a group by, मैंने group by के साथ जो है ना अगर इसको इस्तेमाल करना है जिस तरह कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है, तो let's try that as well. So I would say select everything from the बल्कि in fact not everything, let's say select the movie time, movie underscore time. ठीक है, तो इससे पहले जो टेबल मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा दैट वुड बी दी मूवी लैंग टेबल. ठीक है, और
इसको मैं फॉर द टाइम भी जरा हटा देता हूँ. So now only I have only these tables available, or these two columns available, and then I would group them. So I would sum the movie down. And group by movie line. And let's see if that runs, and it does. So ये हमारे movie का जो table है, उसके अंदर से movie language की type पे अब मेरे पास एक sum आ गया. And then I go ahead and order by the movie language. So इस केस में क्योंकि मैंने एक टेक्सचुअल डेटा के ऊपर जो है बेसिकली सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जो है बेसिकली इसने अपनी जो मूवी की मूवी लैंग्वेज को ऑर्डर बाय किया है, और मूवी टाइम जो है ना हमें उसी हिसाब से नजर आ रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज एक्चुअली ऑर्डर बाय विद अ ग्रुप बाय और विदाउट अ ग्रुप बाय. मैंने दोनों की आपको एग्जांपल्स दिखाई हैं. Now I would actually like to briefly touch base with joins. So what are joins? Joins क्या चीज होते हैं? So joins allow you to make different tables speak together. As I actually told you guys earlier, joins जो हैं they allow you to make the tables speak together. ठीक है? और ये primary और secondary keys के concept को इस्तेमाल करते हैं. Tables can then be joined together using different types of joins. ठीक है? In order to make them speak together. जो join हम अभी लगाना जो है ना सीखेंगे या इस्तेमाल करेंगे, that is only going to be the left join. और joins are the methodology जिनके जरिए आप distributed database को जो है ना इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं in order to gain some sort of insights. Okay, so joins की मुख्तलिफ किस्में होती हैं. There is inner join, left join, right join, and full join. Inner join is very self-explanatory, as you can see the visual. कि inner join के केस में whatever is common between the left and the right table actually comes through in that join. But when it comes to left join के केस में you get everything from the left table, and then what is common between the left and the right table from the right table. ठीक है? So left join की basically ये definition होती है, everything from the left table and whatever is common between the left and the right table from the right. And right join is the exact opposite of this, and a full join is actually when you combine both of these tables through a join. So दोनों tables में से सारा data जो है ना वो आ रहा होता है. Join लिखने की जो methodology है again ये from के बाद insert किया जाता है, और the methodology is fairly simple. You can select a particular table or select everything from a particular table, or like particular columns from table a particular table, or then you can decide after the from कि आपने left join लगाना है, right join लगाना है, कौन सा join लगाना है, and then you have to provide the join with the keys. ठीक है ना, जो कि इन दोनों टेबल्स के दरमियान में जो है ना ऑपरेट करेंगे ताकि ये दोनों आपस में बात कर सकें. अगर तो मैं जो हूँ बेसिकली इसकी एक एग्जांपल करना चाहूँ यहाँ पर. So I would go over here and try to, I can't do that on the online editor, but I would actually like to do it over here in SSMS because यहाँ पे ये ज़रा ज़्यादा आसान होगा. But I think you guys can just follow by looking at me. So let's say कि I have two tables जो कि मैंने पहले भी इस्तेमाल किए थे. ठीक है? All right. So if I were to execute this, I would get both the tables. So let's say कि my boss comes to me and says to me कि ऐसे यार मुझे product wise line total चाहिए. So product wise हमें line total चाहिए. So क्योंकि product wise उसने कहा है तो मुझे product का नाम भी साथ में लेकर आना है. So नाम तो production.product में पड़ा हुआ है, सेल्स में तो सेल्स ऑर्डर डिटेल पड़ी हुई है और साथ में प्रोडक्ट की आईडी पड़ी हुई है. So what would I do? I would work with some sort of a join. So I would say select everything. Select बल्कि इसी तरह शुरू करते हैं. Select star from production dot product. Okay. और फिर स्टार को मैं
for the time being remove कर देता हूँ. I will remove this and in place of this I would just put in product ID, comma, and then I would put in line total as well. Line total जो है वो मुझे कॉल नहीं करने दे रहा, बट चले ओके. Let me actually force feed it this. Oh, my apologies. अच्छा, मैं sorry गलत table. So I would select everything. Select product ID and the name from the production.product table. My apologies. Yeah, so I would select the product ID and the name from the production.product table. तो अब मेरे पास ये खाली टेबल आ गया. अब इस टेबल को मैंने ज्वाइन करना है विद दी सेल्स ऑर्डर डिटेल टेबल यूजिंग दी यूजिंग दी प्रोडक्ट आईडी. ठीक है. सो आई वुड यूज अ लेफ्ट ज्वाइन. सो यहां से लेफ्ट ज्वाइन का सिंटैक्स शुरू हो जाएगा, लेफ्ट ज्वाइन. सो इस लाइन के अंदर मैंने क्या लिखा है? सो आई एम गोइंग टू लेफ्ट ज्वाइन sales dot sales order detail on, okay, product dot product ID. अब ये वो की है जो यहाँ पे मुझे देना जरूरी है. अब प्रोडक्ट आईडी जो है वो प्रोडक्ट के अंदर भी पड़ी हुई है और सेल्स ऑर्डर डिटेल के अंदर भी ये प्रोडक्ट आईडी पड़ी हुई है. ओके. अच्छा, अब यहां पर मुझे एक अदद एरर आ रहा है बिकॉज यहां पर एक एम्बिगुअस कॉलम नेम जो है ना प्रोडक्ट आईडी जो है ना वो उसको नजर आ रहा है. क्यों? बिकॉज उसको ये समझ नहीं आ रही कि क्या मैं प्रोडक्ट आईडी यूज करूं या मैं सेल्स ऑर्डर डिटेल डॉट प्रोडक्ट आईडी यूज करूं. सो यहां पर जो टेबल का नाम है वो देना जरूरी होगा. मुझे ये प्रोडक्ट आईडी चाहिए प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी से. तो अब आप देखें कि ये एरर नहीं आ रहा. अच्छा, अभी भी हमारे पास वही टेबल आ रहा है, लेकिन अब ज्वाइन जो है क्योंकि लग चुका है तो मैं अब सेल्स ऑर्डर डिटेल से इंफॉर्मेशन को कॉल इन कर सकता हूं. क्या इंफॉर्मेशन मैंने कॉल करनी? लाइन टोटल. मैंने सेल्स ऑर्डर डिटेल से लाइन टोटल कॉल करना. अब आप ये देखें लाइन टोटल यहां पर और हो गया. तो अब आप ये देखें कि यहां पर नेम की जगह क्यों आ रहा है? एक सेकेंड का, एक सेकेंड. या सॉरी सामान ही डाला था. सो नाउ शी कैन सी. तो अब ये दोनों टेबल जो है ना वो इन टेंडम टुगेदर काम करें. सो प्रोडक्ट आईडी जो कि मैं प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट टेबल से लेकर आया, नेम जो मैं प्रोडक्ट टेबल से लेकर आया, और लाइन टोटल जो है मैं सेल्स ऑर्डर डिटेल टेबल से लेकर आया. और लेफ्ट ज्वाइन सिंटैक्स थोड़ा सा जो है ना वो इंटिमिडेटिंग लगता है, लेकिन इट्स नॉट दैट हार्ड. हमेशा लेफ्ट ज्वाइन या कोई भी ज्वाइन वो लगेगा फ्रॉम के बाद. सो द सिंटैक्स इज लेफ्ट ज्वाइन सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल, यानी कि वो टेबल जिसके साथ मैंने ज्वाइन लगाना है, ऑन over here in this line you give the keys. So product dot product ID is the key from the product table, or sales order detail में dot product ID is the key from the sales order detail table. And now you can see कि यहाँ पर अगर मैं नेम को पास कर रहा हूं तो इट्स नॉट गिविंग मी एन एरर. लाइन टोटल को पास कर रहा हूं जो कि दो मुख्तलिफ टेबल्स में पड़े हुए हैं, इट्स नॉट गिविंग मी एन एरर. लेट्स अज्यूम कि मैं इस की को या लेफ्ट जॉइन को बंद कर देता हूं. So आप ये देखें फौरन ही एरर आना शुरू हो गया. इट्स नॉट गोइंग टू लेट मी एग्जीक्यूट दिस बिकॉज उसे प्रोडक्ट का टेबल तो नजर आ रहा है बिकॉज वो फ्रॉम में पड़ा हुआ है, लेकिन लाइन टोटल जो कि एक डिफरेंट टेबल के अंदर पड़ा हुआ था और ज्वाइन की वजह से कॉल हो पा रहा था वो अब उसे नजर नहीं आ रहा. ये मैंने इनको कमेंट आउट कर दिया. ये ग्रीन का मतलब है कि कमेंट आउट हुआ है कोड, तो ये कोड जो है वो एसक्यूएल रीड नहीं कर पाएगा. अब अगर मैं इनको रिमूव कर दूं और फिर मैं चलाऊं तो आप ये देखें तो नाउ ये अब ये है लाइन टोटल जो है यहाँ पर पूरा आ रहा है. तो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेक्शन. मैंने एसक्यूएल के अंदर जो है प्राइमरीली बस यही मोटी मोटी जो चीजें थी, बेसिक चीजें हैं ये. अगेन
बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्स के अंदर हम जो है ना और भी चीजों को कवर करवाते हैं। पावर बीआई इटसेल्फ इज अ बीआई सेल्फ सर्विस टूल या बीआई टू द यूजर टूल, ठीक है, जो कि आपको ईटीएल विजुअलाइजेशन वगैरह और डेटा इंजेक्शन टू अ सर्टेन लेवल उसकी जो है बेसिकली कैपेबिलिटीज जो है वो अलाउ करता है, ठीक है। सो it's primarily Power BI is primarily a self service या self BI service tool और a BI to the user tool, ठीक है, कि यूजर के एंड पर एक ऐसा यूजर जो कि नॉन टेक्निकल है, जिसको जो है ना बेसिकली बहुत ज्यादा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या एसक्यूएल की क्यूरिंग भी नहीं करनी आती, वो पावर बीआई को यूज करके जो इस टूल को यूटिलाइज करके क्या कर सकता है, he can actually develop visualizations and do a lot of analysis. So this is what Power BI is. Why do we use Power BI? ठीक है ना, so इसकी सबसे important बात यह है कि it connects, transforms and analyzes millions and rows of data. जिस तरह I told you guys earlier, मैंने like तकरीबन 80 to 100 जिसे कहते हैं मिलियन रोज के साथ Power BI के अंदर आराम से कनेक्ट किया हुआ. That's a lot of data. So you can access data from virtually anywhere. Database tables, flat files, cloud services, folders, etc. And create fully automated data shaping and loading procedures. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब आप एक्सेल की फाइल के अंदर कभी भी काम कर रहे हो तो आप अगर उस फाइल के ऊपर लेट्स से कि आपके पास एक ही फाइल रोज आती है और आपको उसके ऊपर किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, तो आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअली करनी पड़ेगी रोज. यू वुड नीड टू मेक दोस चेंजेस ऑन अ डेली बेसिस अनलेस कि आप वीबीए को कोई स्क्रिप्ट लिख लें, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. बट इन पावर बीआई आप ईटीएल के प्रोसेस के अंदर जो है प्रोसीजर्स को सेट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, और हर दफा अगर आपका एक ही किस्म का डेटा आ रहा है या एक ही किस्म की फाइल आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी. सो इट्स एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन इट कम्स टू automating the transformation of the data. Till then, it allows you to build relational models to blend data from multiple sources. So you can create table relationships to analyze holistic performance across an entire data model. Then it helps you in defining complex calculations using data analysis expressions. या data enrichment अगर आपने जहाँ पर करनी हो वो आपको ये allow करता है by enhancing data sets and enabling advanced analytics with powerful and portable DAX expressions. Then it allows you to visualize data with interactive reports and dashboard. So जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है ना, ये प्राइमरीली सिर्फ 10% है काम का. बाकी का काम जो है ना वो आपका इससे सारा पीछे होता है. विजुअलाइजेशन तो बहुत जल्दी बन जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में डेटा को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोडिंग के लिए तैयार करना, कनेक्ट करना सोर्स के साथ, स्केड्यूलिंग करना उस डेटा की, ये सारे का सारा इट टेक्स द चंक ऑफ द टाइम. Then is Power BI is the industry leader among Power BI platforms. Microsoft Power BI is intuitive, powerful, and absolutely free to get started with. So इसका जो desktop version है, that is absolutely free, and it comes embedded with an ETL tool. So it has become like one of the best softwares for visualization and transformation and ETL, in the market. इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो ETL का जो embedded tool है और जो ये इसकी desktop version जो totally free है, उससे जो है ना इंसान बहुत ज्यादा फायदा उठाता है. So उससे आपकी लर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है. Sorry about that. So let's quickly actually try to jump to how we can download Power BI. So let me share the link with you. So you have to come to this page. And then you have to go to this download button. And it's going to ask you to open Microsoft Store. इसको please खोल लें. So it's going to open up the store. And यहाँ पर आपको Power BI जो है ना नजर आएगा. मेरा क्योंकि इंस्टॉल हुआ है ऑलरेडी. So मुझे शायद नजर ना आए. So मुझे ओपन का ऑप्शन आ रहा है. आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड आएगा. So please go ahead and download this quickly. So जो बेसिक चीजें जो हमने बेसिकली देखनी है
पावर बीआई के अंदर, लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस, ओके। सो एज सून एज यू ओपन अप द पेज और पावर बीआई, तो इस तरह का जो है ना आपको एक इंटरफेस जो है वो मिलेगा। यू कैन क्लोज दिस अप फॉर नाउ, ठीक है। और यू वुड एक्चुअली एंड अप एट द कैनवस, जहां पर बेसिकली आपने पावर बीआई को जो है विच इज द रिपोर्टिंग व्यू, दिस इज द रिपोर्ट व्यू, देन देयर इज अ डेटा व्यू एंड देन देयर इज अ मॉडल व्यू। जो फ्रंट एंड है इसके ऊपर बेसिकली आपको जो है ये 3 व्यूज नजर आ रहे होते हैं। लेकिन जो पावर क्यूरी है वो प्राइमरीली जो है ना वो इधर पड़ी हुई थी ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर। इफ यू गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा, सो पावर क्यूरी जो है वो एक सेपरेट विंडो में खुलती है। जनरली लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, ये 2 सेपरेट विंडोज हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। एज यू कैन सी कि मेरा जो फ्रंट एंड है, जो कि मैं पहले जिसके ऊपर क्लिक कर रहा था, वो यहाँ नजर आ रहा है, और जो मेरा पावर क्यूरी है बैक एंड है वो यहाँ पर है। सो अगर मैंने डेटा को इसके अंदर सबसे पहले इंजेस्ट करना है या इसके साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आई वुड नीड टू गो टू गेट डेटा फ्रॉम द फ्रंट एंड। ये काम पावर क्यूरी से भी हो सकता है, लेकिन अभी हम फ्रंट एंड से करें। गेट डेटा के अंदर यू वुड एक्चुअली सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ कनेक्टर्स जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। पावर बीआई के अंदर एक प्लेथोरा ऑफ डिफरेंट कनेक्टर्स हैं। ये सारे वो कनेक्शंस हैं जिनके साथ आप जो है ना पावर बीआई को कनेक्ट करके डेटा को कॉल कर सकते हैं। यानी आई थिंक ओवर लाइक 60-70 जो है ना डिफरेंट कनेक्टर्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। हम जो है ना सिर्फ एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस के साथ कर सकते हैं कनेक्ट, एक्सेस के साथ कर सकते हैं, एक्सेल के साथ कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, जेसॉन फाइल के साथ कर सकते हैं, मायस्क्यूएल की डेटाबेस के। सो अगेन माय पॉइंट इज कि यू नो थोड़ा ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट नॉन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स बोथ के साथ। मैं एक जल्दी से सिर्फ एक जो है ना हम कनेक्ट तो एक्सेल की फाइल के साथ ही करेंगे, लेकिन लेट्स से कि मैंने अगर जो है कनेक्ट करना हो विद एन एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, तो उसके साथ भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास एक एसक्यूएल की सर्वर डेटाबेस जो है ऑलरेडी बनी पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है, और मेरी लोकल एनवायरनमेंट में, तो मैं उसके साथ आपको कनेक्ट करके जल्दी से दिखाता हूँ। सो आई विल गो टू एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। यहाँ पर मैं जैसे ही खोलूंगा तो इट्स गोइंग टू आस्क मी अ कपल ऑफ थिंग्स। सर्वर का नाम मांगेगा, डेटाबेस का नाम मांगेगा। मैं सिर्फ इसे सर्वर का नाम दूंगा जो कि एक्चुअली ये पड़ा हुआ है SSMS लॉगिन करते हुए मेरे सर्वर का नाम। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूंगा एंड देन आई वुड चूज इंपोर्ट या डायरेक्ट क्यूरी में से अभी मैं इंपोर्ट को बेसिकली यूज करूंगा एंड आई विल प्रेस ओके। तो अब आप ये देखें कि ये मेरी लोकल जो डीबी है उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह आप ओवर द इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आप ये देखें मेरी जो दोनों एडवेंचर वर्क्स की डेटाबेसेस हैं मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं और उनके अंदर पड़े हुए टेबल्स, ठीक है, और सॉरी एग्जैक्टली, सो यानी कि ये आपके डेटाबेस और उसके अंदर पड़े हुए ये सारे टेबल एंड देन आई कैन डिसाइड कि मैंने कौन सा टेबल जो है वो कॉल करना है। ये मेरी अपनी मर्जी है। सो सिंस हमने एक्सेल के साथ कनेक्ट करना है तो आई वुड एक्चुअली गो टू गेट डेटा एंड देन गो टू एक्सेल वर्कबुक। और मैंने ये रखा था डेस्कटॉप के ऊपर, मैंने अपनी दोनों फाइलें रखी थी। तो मैं जो हूँ 4/9/2020 को पहले कनेक्ट करता हूँ और जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो ये एक विंडो पॉपअप करेगा यहाँ पर, जिसके अंदर बेसिकली मेरी ये फाइल जो है ये उसका जो है स्कीमा मुझे यहाँ पे नजर आएगा राइट हैंड साइड पे इन रिपोर्ट प्रीव्यू। मैंने इसी फाइल को जो है वो इंजेस्ट करना है, तो मैं लोड करने के बजाय ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने डेटा में थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी है। ETL का प्रोसेस अगर हमने देखना, अब इसने जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक किया, सो व्हाट इट हैज डन इज कि इट हैज एक्चुअली गॉन इनटू पावर क्यूरी और दिस इज वेयर यू कैन एक्चुअली डू योर ETL। अब ETL मैंने से तो एक्सप्लोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग का जो काम है वो आप यहाँ पर करेंगे और आपका जितना भी काम है वो यहाँ राइट हैंड साइड पे स्टेप्स की सूरत में एक खास लैंग्वेज होती है जिसे M क्यूरी कहा जाता है, उसके अंदर रिकॉर्ड होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो लेट्स से वेब सेल्स है मुझे ये नजर ना आए। पहली बात ये मैं ये इस कॉलम को रिमूव करना चाहता हूँ, सो आई कैन डू दैट। जो अननेसेसरी कॉलम्स हैं उनको जो है मैं रिमूव करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सारे कॉलम्स जो हैं माँ सिवाय टोटल सेल्स के और टोटल ऑर्डर्स के, ये बिल्कुल मेरे लिए यूजलेस हैं, मैं इनको रिमूव करना चाहता हूँ। सो आई एम गोना गो अहेड एंड रिमूव दीज कॉलम्स। उसके अलावा जो है स्टोर नंबर मेरे लिए जरूरी है, ऑर्डर डेट मेरे लिए जरूरी है, मंथ्स ओपन मेरे लिए अननेसेसरी है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इन ऑन टॉप ऑफ दैट
ये तो मैं बहुत बेसिक सी ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, बट देयर आर अ लॉट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल होम से यू कैन डिसाइड कि कौन सी रोज मैंने डिलीट करनी है. सो लाइक एक्सेल यू कांट click and delete or edit rows in Power Query because this would hamper the ETL process. Because पूरे ETL process की sanctity को maintain करने के लिए जरूरी है कि पूरे का पूरा ETL process जो है उसमें जो भी चीज ट्रांसफॉर्म की जा रही है उसको सही तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है. सो अगर आप क्लिक एंड चेंज करेंगे तो इट वुड बी हार्ड फॉर Power Query to follow those changes. So you can't just simply go into a cell and change the stuff in Power Query. ठीक है. हाँ, अलबत्ता आप रोज और कॉलम्स हैं वो डिलीट कर सकते हैं. जिस तरह मैंने कॉलम्स आपको डिलीट करके दिखाया, इसी तरह रोज भी रिमूव हो सकती हैं. फिर आप डेटा का जो डेटा टाइप है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ से कि अगर गलत डेटा टाइप सिलेक्ट हुई है या आप डेटा टाइप को चेंज करना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं टोटल सेल्स को इस वक्त डेसिमल से चेंज करना चाह रहा हूँ होल नंबर में. सो आप ये देखें कि मैंने जैसे ही ये किया तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो गया, प्लस यहाँ पे चेंज टाइप का एक स्टेप ऐड हो गया. ये वो ट्रांसफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूं. और इसका फायदा ये होगा कि जब मैं अगली फाइल लेकर आऊंगा तो उसमें मुझे ये सारी की सारी चीजें कॉपी नहीं करनी पड़ेगी. मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका कोड कॉपी करना पड़ेगा और ये स्टेप्स जो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगे. और उसके अलावा लेट्स अज्यूम कि मैं जो हूँ यूएस/कैड को जो है बेसिकली होल नंबर में, बट इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ. फिर और ट्रांसफॉर्मेशंस आप कर सकते हैं. आप इफ कंडीशंस की बेसिस के ऊपर यहाँ पे नए कॉलम ऐड कर सकते हैं. यू कैन ट्रांसपोज डेटा, यू कैन जिसे कहते हैं पिवट डेटा, यू कैन अनपिवट डेटा. ये तीनों मुख्तलिफ चीजें हैं. ट्रांसपोजिशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पिवटिंग एंड अनपिवटिंग. आई होप आप लोगों को पिवटिंग और अनपिवटिंग का कॉन्सेप्ट है. सो इट्स अ हिंज जिसकी बेसिस पे आप अपने डेटा का जो साख्त है उसको तब्दील कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली change the orientation of the data on a particular point. So pivot जो है और unpivoting जो है वो basically works like a hinge. So you can select a particular dimension and on the basis of that you can then change the flow of information for any mathematical variable. So किसी भी कैटेगोरिकल वेरिएबल की बेसिस के ऊपर आप किसी भी मैथमेटिकल वैल्यू को उसकी जो साख्त है उसको तब्दील कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट पिवटिंग और अनपिवटिंग इज. पिवटिंग इज the definition that I just gave you. Unpivoting is the opposite of what I said. अगर let's say कि आपके पास already data जो है वो एक particular let's say left to right horizontal जो है ना format में पड़ा हुआ है, you can pivot, you can unpivot the data to make all of that data vertical. ठीक है. सो ये बेसिक सी जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं. उसके अलावा आपने अगर डेटा को स्प्लिट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटर्स, ये टेक्स्ट टू डिलिमिटर्स जो हैं ये हमें एक्सेल में भी अवेलेबल हैं. उसके अलावा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बेसिस पे अगर आपने स्प्लिट करना हो, पोजीशंस की बेसिस पे करना हो, लोअर अपर केस, अपर लोअर केस, ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनकी बेसिस पे आप डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और डेटा को स्प्लिट करता हूँ, बल्कि इनफैक्ट ये स्प्लिट जो है मैं होम से जाके करूंगा बिकॉज ये डेट डेटा के ऊपर है. सो यहाँ पर अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, so I would say कि यार ये you need to split the order date on the basis of delimiter. So I would select the delimiter. It's going to tell me कि अच्छा यार जो the delimiter in the system is a forward slash, and I would say okay fine, on the basis of the forward slash make splits of the data जहां पर तुम्हें forward slash में. So इस डेट को गौर से देखिएगा. So ये जैसे ही मैं डिलिमिनेशन करूंगा तो इसके 3 कॉलम बन जाएंगे. एक कॉलम जो था वो पहला, दूसरा और तीसरा. आपकी जो डेट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी. सो दिस इज व्हाट डिलिमिनेशन इज. दिस इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन. देन यू कैन ऐड कॉलम्स एज वेल. यानी कि वही मैंने जिस तरह बताया था, यू कैन ऐड कस्टम कॉलम्स. सो फॉर एग्जांपल आई वर टू से कि मैंने यहाँ पर एक कैटेगोरिकल वेरिएबल बनाना है जो कि टोटल सेल्स की बेसिस पे बकेट्स बनाए. सो इफ आई वर टू गो ओवर हियर एंड ऐड अ कंडीशनल कॉलम which said that if the total sales is less than or equal to 1,000, I would call this bad sales.
and if the total sales is less than or equal to 2000, I would say this is average sales. And again, I would add a third clause is less than or equal to 3000. This is great sales. Or else this is awesome. यानी कि इससे ऊपर अगर कोई सेल है तो दैट्स ऑसम सेल. मुझे वैसे शक हो रहा है कि ये मुझे एरर देगा बिकॉज यहाँ पे मैंने कॉमर्स डाले हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स, बट लेट्स सी, लेट्स ट्राई. ओ या एग्जैक्टली, इसने साथ में वो कॉमर्स भी डाल दिए. लेट मी रिमूव दोस, आई डोंट वांट दोस बिकॉज ये ऑलरेडी टेक्सचुअल डेटा था, इसलिए इसमें यहाँ पे कॉमर्स खरीदते हैं. तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर इसने कैटेगोरिकल कॉलम बना दिया है जिसका नाम इस वक्त कस्टम आ रहा है, बट आई चेंज दैट. I'll come over here and say sales categories. And अब ये buckets हैं. So I can use these buckets. ठीक है ना, in order to visualize my data, जो कि मैं आगे आपको करके भी दिखाऊंगा. So ये transformations हैं that you can perform on in Power Query. इसी तरह लेट्स से कि मैं एक पर्टिकुलर डेट का डेटा यहाँ पर लेकर आया था. मैं ये जो स्प्लिट किया था, मैं इस वाले स्टेप को रिमूव कर रहा हूँ. अब ये देखिएगा यहाँ पर ना स्टेप्स की मेरी हिस्ट्री क्रिएट हो रही है. आई कैन ऑलवेज रीविजिट दोस स्टेप्स एंड आई कैन ऑलवेज चेंज दैट ETL प्रोसेस या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. सो आई वांट टू रिमूव दिस split of columns. So I'm going to remove this. It's going to delete it and I will have my whole date again. ठीक है. So just a basic overview. So ये जो फाइल थी या ये जो क्यूरी है, इसका नाम था 9/4/2020 बिकॉज ये 9/4/2020 की फाइल. ठीक है. अब अगर मैं इसके अंदर एक और जो दूसरी फाइल मैंने आप लोगों से शेयर की थी वो लाना चाहूँ तो वो मैं कैसे लेकर आऊँ. So I'm going to go to home. I'm going to go to new source, go to Excel, और अब मैं पावर क्यूरी से जो दूसरी फाइल है वो लेकर आऊँगा. सो जो दूसरी फाइल है उसके अंदर से मैं रिपोर्ट को ही सिलेक्ट करता हूँ बिकॉज हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा फाइल्स भी बनाई थी और ये हमने कॉलम्स भी बनाए थे, बट आई विल रिमूव दोस और मैं इसको ओके कर देता हूँ. तो आप ये देखें कि 10/4/2020 भी यहाँ पर मुझे अवेलेबल हो गया. ये दो फाइल्स थी जो मैंने आप लोगों से भी शेयर की. अब इसके राइट हैंड साइड पे जो है ना बेसिकली कुछ कॉलम्स आ रहे हैं जो कि मैं रिमूव करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि आई वोंट नीड टू डू मोस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन अगेन. सो आई कैन गो टू 9/4/2020 और यहाँ पे ये जो सारा ETL का प्रोसेस है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ. व्हाई? बिकॉज दिस इंटायर ETL प्रोसेस या ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये एक कोड की फॉर्म में मुझे इस एडवांस एडिटर में अवेलेबल है. आई कैन सिंपली कॉपी द कोड फ्रॉम ओवर हेयर. ठीक है. and press done and come to my second query और यहाँ पर एडवांस एडिटर के अंदर जाकर I can say just place this over here. ओके ये दो चेंज टाइप्स आ रहे हैं. ओके इसको इनमें से एक को मैं डिलीट कर दूंगा. सेकंड खैर इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है जो कि हमने, चले एक काम करते हैं. पहले मैं पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैनुअली कर देता हूँ. I'll do the partial transformation manually जिसमें मुझे ये एक्स्ट्रा कॉलम्स जो हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ. I will delete these and then I would go back and copy this code and then try it.
ओके, ये अभी भी मुझे एरर दे रहा है किसी वजह से, बिकॉज रिमूव कॉलम्स का स्टेप मैंने कहाँ पर। एक्चुअली ये जो बीच में बेसिकली, क्योंकि हमारा जो एक्सेल की फाइल थी उसके अंदर हमने कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स डाले थे, उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी दोनों फाइलें या सारी फाइलें एक ही फॉर्मेट के अंदर आ रही हैं, तो फिर आप ETL का जो प्रोसेस है उसको जो है ना, यू कैन ऑटोमेट इट। सो लेट मी फिक्स दैट फर्स्ट। मैं जल्दी से जाता हूँ और अपनी एक्सेल की जो फाइल है जिसके अंदर एक्चुअली में ये एक्स्ट्रा जो कॉलम्स ऐड हुए थे उनको जो है सबसे पहले ठीक कर देता हूँ, ताकि जो सोर्स है मेरी वो एक जैसी आए हमेशा। And then let me go ahead and make those transformations. Hopefully that should solve the problem. तो हमारी जो ये फाइल थी जिसके अंदर हमने ये काम किया था, इसमें रिपोर्ट वाले पेज के अंदर we had these numbers actually जो कि राइट हैंड साइड पे आ रहे थे। इनको हम रिमूव कर देते हैं। I will just save this file once again after removing these, and then I would just simply go over here and refresh the data. अच्छा, वो एग्जैक्टली इसने कहा है कि जी ये अब मुझे कॉलम 14, क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिया, सो आई एम जस्ट गोना डिलीट दिस फाइल एंड री ब्रिंग इट अगेन। इसको मैं दोबारा एक दफा ले आता हूँ, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो इस फाइल का नाम है 10/4/2020, राइट। एंड देन आई वुड एक्चुअली गो टू अगेन आई वुड गो टू माय लास्ट क्यूरी जिसके अंदर मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशंस थोड़ी बहुत की हुई थी। इधर ही से जो है मैं एडवांस एडिटर में जाता हूँ और वो पीस ऑफ कोड जो कि मैंने कॉपी करना है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब क्योंकि दोनों फाइल्स के अंदर कॉलम्स जो हैं उनके नाम और सारी की सारी सिमेट्री एक जैसी है, सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉपी पेस्टिंग है दिस शुड वर्क। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने 9/4/2020 पे की थी वही मैं 10/4/2020 पे भी आई शुड बी एबल टू रेप्लिकेट दिस। Let's see if it allows me to do that. ये जो चेंज टाइप का फोल्डर है ये मैं एक्स्ट्रा ले आया, सॉरी चेंज टाइप की जो लाइन आइटम है एक्स्ट्रा ले आया, सॉरी वहां से। एंड नाउ वी शुड बी गुड टू गो। यप। अच्छा, अब इस तरह करने का फायदा क्या है? सो नाउ माय कोड हैज नो एरर्स। तो मैंने 9/4/2020 की ट्रांसफॉर्मेशन का जो कोड था उसको उठा के 10/4/2020 के साथ मर्ज कर दिया। व्हेन आई गो अहेड एंड जस्ट प्रेस डन, तो आप ये देखें कि ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन अब 10/4/2020 में भी रेप्लिकेट होगी। एंड दिस इज व्हाट आई मेंट बाय रेप्लिकेबिलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। सो अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर सिमिलर फाइल्स बार बार आ रही हैं, so you won't need to do all of the transformations all over again. You can just simply copy and paste the code to, whatever you were doing in one file, do it automatically in the other file. Yes, उसके लिए कोड के साथ थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है और उसके लिए कोड की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अब ये M का कोड है, आपने शायद M का नाम ना सुना हो। पावर BI की जब भी बात आती है तो हम DAX का नाम सुनते हैं, लेकिन M क्यूरी या मैशअप क्यूरी जो है वो बेसिकली पावर क्यूरी को रन कर रही होती है, वेयर एज DAX जो है वो फ्रंट एंड इनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, सो ये M क्यूरी है, इसका कोड जो है वो इट्स वेरी रीडेबल, बट इसको लिखना जरा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन एज यू सॉ कि मैंने कोड की एक लाइन भी नहीं लिखी, ये कोड ऑटोमेटिकली मेरी इन ट्रांसफॉर्मेशंस को सिलेक्ट करने से जनरेट हो रहा था, तो मैंने सिर्फ उसको कॉपी किया और नई जगह पे पेस्ट कर दिया।
सो अगेन ये तो बहुत छोटी ट्रांसफॉर्मेशन थी, हो सकता है आपकी 100 स्टेप्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो जो कि आपको डेटा के ऊपर करनी पड़े। इन दैट केस इट माइट बी वेरी यूजफुल कि आप वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना रेप्लिकेट कर सकें, और ये जो एम क्यूरी है इट अलाउज यू टू डू दैट। ठीक है, सो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था पावर क्यूरी का, और जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम कि हमारा डेटा जो है वो क्लीन अप हो गया है, और हम अब इसको क्लोज एंड अप्लाई करके फ्रंट एंड पे लेकर जा रहे हैं। So as I told you earlier, there are two different sections of Power Query, Power BI. There is a front end, which is a combination of your report view, जो कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, डेटा व्यू एंड मॉडलिंग व्यू, एंड देन देयर इज पावर क्यूरी दैट इज एट द बैक एंड, which is a combination of your different tools जिनकी बेसिस के ऊपर आप जो है ना डेटा की ETL परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये मेरा डेटा तो लोड हो गया, अब इन तीनों टैब्स में से जरा जाके गुजर के देखते हैं। सो इस टैब के अंदर तो हम ऑलरेडी हैं, विच इज योर रिपोर्ट व्यू। फिर मैं डेटा टैब में जाता हूँ। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली कंफ्यूज पावर क्यूरी विद दिस व्यू। ये दो डिफरेंट व्यूज हैं। दिस इज द डेटा व्यू। जो पावर क्यूरी है वो डिफरेंट थी इससे, बिकॉज उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्यूरी का पैनल आ रहा था और राइट साइड पे आपके स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे थे। ये सिर्फ आपको, ये वाला जो व्यू है ऑन द अदर हैंड ओनली टेल्स यू अबाउट जो मुख्तलिफ क्यूरीज या टेबल्स जो हैं जो कि आपने लोड किए हैं फ्रंट एंड, और उनका डेटा दिखाता है। दैट्स ऑल। ये दो फाइल्स थी जो कि मैंने लोड की थी, और वही मुझे उनका डेटा नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर छोटी मोटी ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकता हूँ, लेकिन जो पावर क्यूरी इनेबल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके अलावा देन देयर इज अ मॉडल व्यू। सो मॉडल व्यू के अंदर अगर आप देखें तो ये दो टेबल्स जो हैं ये हमें नजर आ रहे हैं। अब मॉडल व्यू इज जस्ट लाइक जस्ट लाइक व्हेन यू एक्चुअली यूज जॉइंट्स। सो इस केस में हमारे मॉडल व्यू के अंदर 10/4/2020 और 9/4/2020। नाउ इफ आई वर टू मेक बोथ ऑफ दीज टेबल्स स्पीक टुगेदर आपस में, I would simply drag and drop this store number from over here to here. So अब इन दोनों टेबल्स के दरमियान में एक 1-to-1 रिलेशनशिप बन गया, और इसकी बेसिस के ऊपर मैं फ्रंट एंड पे काफी सारी विजुअलाइजेशन जो हैं वो बना सकता हूं। ठीक है, अगेन व्हेन इट कम्स टू पावर बीआई, जस्ट अ डिस्क्लेमर, पावर बीआई वर्क्स द बेस्ट विद 1-to-many रिलेशनशिप्स। ये एग्जांपल की खातिर जो है मैं आपको सिर्फ 1-to-1 रिलेशनशिप दिखा रहा हूं, बट ओवर हियर द मोस्ट preferred schema is or cardinality between two tables is 1-to-many, और जो स्कीमा जो है जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है पावर बीआई के अंदर वो स्टार स्कीमा है। रिमेंबर दैट। ये सिर्फ एग्जांपल की खातिर मैं आपको एक 1-to-1 कनेक्शन बनाकर दिखा रहा हूं। इन एडिशन टू दैट आप डेटा इनरिचमेंट का काम भी यहां पर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने जो है लेट्स से कि कोई डेटा को इनरिच करना है, जो है ना उसके अंदर किसी किस्म का जो है ना एडिशनल चीज ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल अब मैं इसको कैसे बताऊं आप लोग को। फॉर एग्जांपल आपने रो लेवल के ऊपर जो है बेसिकली कोई कैलकुलेशन करनी है, तो आप कैलकुलेटेड कॉलम्स के जरिए कर सकते हैं। तो हमने कंडीशनल कॉलम्स जो है वो पावर क्यूरी में पढ़े थे। डैक्स के अंदर देयर आर कैलकुलेटेड कॉलम्स। ठीक है, हाउ वुड आई एक्चुअली इन्वोक अ कैलकुलेटेड कॉलम? सो लेट्स से मैं ये कहता हूं कि आई वांट टू मल्टीप्लाई टोटल सेल्स विद टोटल ऑर्डर्स। अगेन दैट माइट नॉट मेक एनी सेंस, बट लेट्स से कि ये दो ऐसे कॉलम्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से मुझे कोई इनरिचमेंट या कोई अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सो आई कैन गो ओवर हियर एंड से आई वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम, and in this column I would say this is just a sales multiplied by orders, sales orders का नाम दे देता हूं मैं इस कॉलम का, and I would call in total sales first, जो कि आप ये देखें इंटेलिजेंस यहां पर भी चल रहा है। इसने मुझे ऑप्शंस देना शुरू कर दिए कि तुम किस टेबल के किस कॉलम को बुला रहे हो। मैं 10/4/2020 के टोटल सेल्स को बुला रहा हूं। So I'm going to select that and then put in an asterisk sign or a multiplication sign and say total orders from over here, and then press enter या फिर ये टिक का निशान। तो आप ये देखें कि सेल्स इनटू ऑर्डर्स का मेरे पास एक नया कॉलम यहाँ पे अवेलेबल हो गया। नाउ दिस इज
What is this? This is a calculated column because I calculated a column जो कि रो लेवल पे रन हो रहा है. हर रो में आपको नई इंफॉर्मेशन नजर आएगी बिकॉज हर रो के टोटल सेल्स को आप टोटल ऑर्डर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू वुड कैलकुलेट calculated columns. On the other hand, there is one thing that's called Mayers as well. And what Mayers do is that Mayers do not calculate themselves on row context. जिस तरह आपको row context यहाँ पे नजर आ रहा है. Mayers actually calculate themselves on filter context. And what does that mean? So what it means is कि जब आप किसी visualization को या किसी भी जना सिलेक्शन क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं, सो जो मैयर होता है वो अपने आप को रिकैलकुलेट करता है उस कॉन्टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर. इसका एग्जांपल एक हम सेटअप करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरे पास टोटल ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जिसकी एक वैल्यू आ रही है और मैं इसका एक अदर मैट्रिक्स बना लेता हूं. एंड आई वुड use because ये matrix है which works just like a pivot, so I would actually do this. मैं सबसे पहले इसके अंदर country डालता हूँ, then I put in state, then I put in city, and then I put in store number as well. और ये कहाँ पर चीजें पड़ी हुई हैं? ये एक्चुअली यहाँ पर they are inside this collapsible menu. ये आप देख रहे हैं. So this is how it's actually showing up. अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो मेरे उससे आ रही है. किससे आ रही है? मेरे टेबल से आ रही है, जो कि टेबल मैंने अभी आपको दिखाया था पीछे, ये वाला. क्योंकि मैंने कॉलम्स की इंफॉर्मेशन जो है ना यहाँ पर ऐड की है. मैंने सम ऑफ टोटल ऑर्डर्स डाला है. इसी तरह मैं साथ में सम ऑफ टोटल सेल्स भी डाल देता हूँ, और मैंने जो नया कैलकुलेटेड कॉलम बनाया था सेल्स ऑर्डर्स वो भी डाल. बट नाउ अब आप ये देखें ये सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है. But now what I'm going to do is I'm going to create a Mayer. Mayer जो है वो क्रिएट होता है यहां से, न्यू Mayer से. अच्छा, Mayer जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये याद रखें कि ये फिजिकली आपके टेबल के अंदर कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ये ऑन द गो कैलकुलेट हो रहे होते हैं. सो जब मैं Mayer बनाऊंगा भी तो इसका यहां पर एक आइकन तो अपेयर हो जाएगा, लेकिन ये टेबल्स में आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे. सो लेट्स से कि मैं एक Mayer बनाता हूं which is the total sales का ही मैयर है. ठीक है. और इसके अंदर मैं सम करता हूं टोटल सेल्स के कॉलम. अब ये वाली जो वैल्यू है, जो कि आई थिंक टोटल सेल्स की वैल्यू है, दिस वैल्यू जिसके ऊपर मैं पॉइंट कर रहा हूं, should be visible in this मैयर. So I'm going to drag and drop this मैयर over here and change this into a card. So 2 million तो मुझे नजर आ रहा है. अब मुझे इसकी जरा साख्त थोड़ी सी तब्दील करने की जरूरत है. यानी कि ये जिस तरह ये कैटेगोरिकल, सॉरी नॉट कैटेगोरिकल, जस्ट अ सेकंड. एक सेकंड गाइस, इसको मैं नन कर देता हूं. तो आप ये देखिए एग्जैक्टली यही वैल्यू मुझे नजर आ रही है. अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब अब मैं कोई भी सिलेक्शन करूंगा तो मेरी सिलेक्शन की बेसिस पे जो मैयर है वो अपने आप को रिकैलकुलेट करेगा. ठीक है. ये मैयर जो मैंने बनाया ना यहाँ पर, ये कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता. अगर आप डेटा के अंदर देखें, ये 10/4/2020 में इस वक्त ऐसे लग रहा है पड़ा हुआ है ये मैयर. सो 10/4/2020 की जो फाइल है उसमें ये मैयर जो कि कैलकुलेटर के निशान के साथ आ रहा है, ये ऐसे लगता है वहां पर पड़ा हुआ है. लेकिन आप अगर 10/4/2020 की फाइल के अंदर जाकर देखें तो क्या आपको टोटल सेल्स का कैलकुलेटेड मैयर कहीं नजर आ रहा है? वो सिलेक्ट हो रहा है जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं? नहीं आ रहा. ठीक है ना. और वो उसकी वजह यही है कि दिस इज अ मैयर, एंड मैयर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट इनसाइड योर टेबल्स. They actually get calculated on the go by the changing filter context. Or when I say the filter context, whenever I make a selection on a visual, अब ये visual जो है जो मैंने यूं दिखाया हुआ है, ये हो सकता है ऐसे हो. It could have been like this. In fact, इसमें से मैं extra information निकाल देता हूँ.
फॉर एग्जाम्पल स्टेट, कंट्री, सिटी सब कुछ निकाल देता हूँ, सिर्फ स्टोर नंबर रहने देता हूँ, और टोटल सम ऑफ टोटल ऑर्डर्स को भी निकाल देता हूँ, और सम ऑफ सेल्स ऑर्डर्स को भी निकाल देता हूँ, और टोटल सेल्स को रहने देता हूँ। और उसके बाद जो है मैं ऐसा करता हूँ कि स्टोर नंबर की जगह इसको रिप्लेस कर देता हूँ विद लेट्स से स्टेट। सो अब आप देखें, जब मैं न्यूयॉर्क को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो मेरी वैल्यू जो मैयर के अंदर थी वो रिकैलकुलेट होगी, विच इज a testament to this fact that whenever my filter context is changing, whenever I'm changing the context of the filter on my visualization page, the Meyer is actually going to recalculate itself. ठीक है ना? So Meyers जो है वो बहुत डायनामिक होते हैं, इनको बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, and they are very powerful. Okay, so I hope the point कि जी Meyers जो हैं वो कैसे डिफर करते हैं from basically calculated columns, वो आपको समझ आ गया होगा. Primarily, you know, when you are calculating a calculated column, you are referring a row context. When you are calculating a Meyer, you are referring to a filter context. You know, as soon as I change the filters over here by making a selection or no selection on the page, ये selection खत्म कर दी, तो that is also a filter context. ठीक है? तो मैं जो हूँ बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ, सो मेरे ये नंबर भी ऑटोमेटिकली साथ साथ में चेंज हो रहा है. Okay, in addition to that, how to actually go about making some basic visualizations. So let me actually, you know, make this a little better. So मैं whole number की जगह इसको यूं कर देता हूँ. I'll make it like you know, comma separated number. Then I would go to call out value once again and display it in millions. Sorry, not millions. Thousands would be better. Yeah, that is better. So basic visualizations जो Power BI के अंदर available हैं, जल्दी जल्दी अगर हम उन्हें review कर लें. So you have like a number of different visualizations available over here. You have stack bar chart, you have stack column chart. Again, सारों में से मैं नहीं गुजरूंगा. You know, but you have, you know, map based visualizations, you have cards, you have KPI cards, you have gauges, और यहाँ पे AI enabled भी काफी सारी जो हैं visualizations अब available हैं. Not going to go through those either, but you know, basic dashboard के लिए जो है ना, आपको for example you can actually start by adding some KPIs on the top like this. ये आपकी total sales थी. इसी तरह जो है मैं total orders का एक measure बना लेता हूँ. So just converting this into तो ये बेसिक से दो KPIs हैं, मैंने ये यहाँ पर डाल दिया. इनफैक्ट इनको मैं राइट पे कर देता हूँ. Let me move them to the right. इसके अलावा जो है आपका ये विजुअल अवेलेबल था. इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने एक कैटेगोरिकल वेरिएबल बनाया था सेल्स कैटेगरी के नाम से, जो कि मैंने पावर क्यूरी में बनाया था. आई विल ट्राई टू यूज दैट ओवर हियर एज वेल. सो उन सेल्स कैटेगरीज की बेसिस के ऊपर अगर मैंने कोई विजुअलाइजेशन दिखानी हो तो आई कैन एक्चुअली ऐड दैट एज वेल. उसमें भी मैं जो है टोटल सेल्स का मेजर भी यूज कर सकता हूँ, और जो है ना अपना जो उसका कॉलम है वो भी यूज कर सकता हूँ. लेट मी चेंज दिस इनटू विजुअल एज वेल. और मैं अगर कैटेगरीज को सेग्रीगेट करना चाहूँ तो मैं सेल्स कैटेगरीज को लेजेंड में भी डाल सकता हूँ.
तो उससे फायदा ये होगा कि हमारे पास ये जो है ना कलर वाइज हमें अवेलेबल हो जाएगी। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आप इसको किस तरह विजुअलाइज करना चाहते हैं। a plethora of different options are available। फिर मैप के विजुअल्स जो हैं आर एक्चुअली एक्सट्रीमली यूजफुल, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था पहले। सो यू कैन यूज अ filled map, you can use a filled map as well, and try to show geospatial data in a filled map. So over here I would put in the state into the location, and then I would put in total sales into the legend. Again ये filled map है ना, this might not be the best option, rather than क्योंकि वो यूं नजर आएगा, rather than I think I should use an Argus map, ये जो बेसिक मैप है, और इसके अंदर स्टेट्स जो हैं वो मेरी मैप होती हुई आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब मैं अगर टोटल सेल्स और टोटल ऑर्डर्स को यहाँ पर जो है बेसिकली बबल साइज के अंदर डालूं, तो आपको ये नजर आएगा कि मेरी टोटल सेल्स के हिसाब से जो ज्यादा सेल्स वाले बबल्स हैं वो बड़े हैं, जो छोटी सेल्स वाले हैं वो बड़े वो कम हैं। और अगेन इस पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकता हूँ, दैट इज अगेन अ सेपरेट टॉपिक, उसको मैं कवर नहीं करता यहाँ पर। लेकिन ये है कि यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ स्टफ ओवर हियर। मेरा मतलब आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं यहाँ पर, यानी मैं टोटल ऑर्डर्स की बेसिस पे कलर बेस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकता हूँ। सो लेट्स से कि साइज जो है वो मुझे ये बता रहा है कि टोटल सेल्स कितनी थी, और कलर जो है वो ये बता रहा है कि आपकी ऑर्डर की हेल्थ कितनी थी। ठीक है, सो बेसिक जो है ना, बेसिकली विजुअलाइजेशन ये हैं। इसके अलावा लेट्स से आपको स्लाइसर्स और फिल्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, यू सो वो कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल इसी तरह मैं स्टेट का, कंट्री का जो है ना स्लाइसर देना चाहता हूँ, और सिटी का स्लाइसर देना चाहता हूँ, तो आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप दिस ओवर हियर, द सिटी ओवर हियर। ठीक है, और इस विजुअल को, ये वाले विजुअल की बजाय आई वुड एक्चुअली यूज द स्लाइसर विजुअल। तो एज सून एज आई डू दैट, तो आप ये देखें कि ये एक अदर मुझे सिटी की यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल हो गई है, जिनको मैं फिल्टरेबल बनाकर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैंने इसी लिस्ट को एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में कन्वर्ट करना हो, तो आई वुड नीड टू गो टू ओवर हियर, आई वुड नीड टू गो टू स्लाइसर सेटिंग्स एंड देन से इट इज अ ड्रॉप डाउन। तो आप ये देखें ड्रॉप डाउन के तौर पे अवेलेबल। ठीक है, यही काम मैं स्टेट के लिए भी कर सकता हूँ। सो आई कॉपी पेस्टेड दिस विजुअल और स्लाइसर, एंड स्टेट जो है मैं उसको, सिटी को स्टेट, दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया है, जो दूसरा स्लाइसर है ये वाला, इसके अंदर मैं सिटी को रिप्लेस कर देता हूँ स्टेट से। सो यही काम आप स्टेट के लिए अवेलेबल। ठीक है, और इसके अलावा जो है, सो दीज आर द बेसिक विजुअलाइजेशन जो कि आप बना सकते हैं इन पावर बीआई। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक एनालिटिकल टूल किट भी अवेलेबल होती है। ये हर विजुअल पे अवेलेबल नहीं होती, ये आपको प्राइमरीली बार चार्ट्स वगैरह के ऊपर और लाइन चार्ट्स और स्कैटर प्लॉट्स पे ज्यादा नजर आएगी। इसके अंदर जो है बहुत सारी जो है आपके पास एनालिटिकल प्रोसेसेस ऑफ द शेल्फ पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लाइन चार्ट बनाया है, तो उसके अंदर जो है ना फोरकास्टिंग का टूल जो है वो एनालिटिक लेयर के अंदर नजर आ रहा इधर ही ऑप्शन पे। अब अनफॉर्चुनेटली मैं लाइन चार्ट बना नहीं सकता, बिकॉज मेरे पास जो है ना वो टेम्पोरल डेटा नहीं है, यानी कि टाइम सीरीज डेटा नहीं है, जो कि जिसके अंदर बहुत सारे टाइम पॉइंट्स। लेकिन अगर होता तो मैं जो हूँ बेसिकली आपको बना के दिखाता कि लाइन चार्ट जो है ना अगर आप बनाएं, और तो उसकी बेसिस पे आप फोरकास्टिंग भी आगे कर सकते हैं, और वो ऑप्शन लाइन चार्ट के इस एनालिटिकल पेन के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, सो दीज वर some of the things जो कि आपको पावर बीआई पे आई होप कि आपको दे गेट यू स्टार्टेड ऑन दिस, होपफुली जस्ट बेसिक टच बेस किया है हमने जो है ना इस चीज के साथ कि पावर बीआई जो है वो बेसिकली किस तरह ऑपरेट करता है। इन आवर बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स हम कम से कम भी 16 से 22 घंटे जो है ना वो पावर बीआई को देते हैं। सो हमें सारे प्रोसेस को जो कि मैंने समराइज करके दिखाया है, वी थॉरली गो थ्रू इट, जिसे कहते हैं ना वन बाय वन विद एग्जांपल्स एंड हैंड्स ऑन। लेट मी एक्चुअली शो यू कि ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो है ना ये कैसे कैलकुलेशंस होती है। आई जस्ट शो यू थ्रू एन एग्जांपल। अच्छा सॉरी, ये डेटा फेल हो गया है, सॉरी, लेट्स सी इफ इट लोड्स अप।
Just bear with me for 1 minute, guys. Gee, I will do that, Pankim, I'll do that. I will provide the slides as well. I'm just loading up this file. Actually, मैंने गलत फाइल खोली थी, so hopefully इसके अंदर जो है ना आपको year on year और month on month का so इसमें if I do this and year on year comparison जो है ये 2019 और 2020 की सेल्स का है. So what you're seeing over here is a year on year trend. So what it does is ये वाला जो विजुअल है नीचे इसके अंदर एक कस्टम जैसे कहते हैं ना, कस्टम तो नहीं, मेरा मतलब यानी कि एक मैयर चल, ये मैयर जो है ये बेसिकली चेंज ओवर टाइम को जो है ना कैलकुलेट कर रहा होता है. Let me actually show you ये परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट होते हैं. एज यू कैन सी ओवर हियर इसके अंदर मैंने डैक्स का एक कैलकुलेट की कमांड के अंदर लास्ट डेट का जो है एक फीचर इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए जो है मैं बेसिकली पिछले सालों का जो है ना उसी दिन का डेटा, यानी कि लेट्स से थर्सडे 25 2020 का आपको यहाँ पे डेटा नजर आ रहा है, लेकिन ये जो कंपैरिजन कर रहा है ये थर्सडे जून 25 2019 से कर रहा है. सो इस बेसिस इस विजुअल के अंदर जो चीज आपको नजर आ रही है वो ये आ रही है कि आपने ऑलमोस्ट जो है पिछले साल के मुकाबले में $2,601 ज्यादा सेल की है, विच इज 62.7% हायर देन लास्ट ईयर. ठीक है, तो इस तरह आप ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है बेसिकली एनालिसिस बना सकते हैं इन पावर बीआई. और ये तो मैंने कस्टम फंक्शन लिख के किया था. इसके लिए ऑफ द शेल्फ जो है क्विक मेजर्स के अंदर जो है बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल क्विक मेजर्स, न्यू मेजर के. सो देयर आर फंक्शंस जिनके जरिए आप ये काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसके लिए होता है QTD, डेट्स क्वार्टर टू डेट, डेट डेट मंथ टू डेट, डेट क्वार्टर टू डेट, डेट्स ईयर टू डेट. इसकी बेसिस पे आप कर सकते हैं. सो अगेन आपको यू हैव टू एक्चुअली नॉट ओनली यूज दिस फंक्शंस बट एक्चुअली यू हैव टू यूज सम सेंस के जी अच्छा यार इस डेट के डेटा को मैंने पिछले डेट के डेटा के साथ जो है ना मैयर करवाना है, तो जो है ना मुझे किस तरह का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. सो अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ द शेल्फ ऑप्शंस अवेलेबल, बट उसके साथ फिर आपको जो है ना अपने कस्टम फंक्शंस भी ना उस डैक्स के फंक्शन के अंदर ऐड करने पड़ते हैं. सो जो बेसिक मकसद है वो ये है कि ओवर टाइम आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकें, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, ईयर टू ईयर बेसिस पे, मंथ टू मंथ बेसिस पे, इवन डे टू डे बेसिस पे.